आई थिंक आपने शेयर नहीं किया आई गेस। हाँ नहीं, मैंने वो स्टॉप की थी अभी जब मैंने किया था। आई जस्ट वांटेड टू चेक बिकॉज़ इट्स स्ट्रीमिंग नाउ। जस्ट राइट नाउ अगर आपने किया था तो नहीं आई मुझे। Okay, we are live on Facebook. Batul, have you checked that? Yeah, but no, I can see it, the notification. Okay, here they're saying redirection. I'll check it on Facebook too. Now I can hear you. Yay! That was so amazing. Thank you so much, everyone. Absolutely, absolutely. Batul, you can go ahead. Very, very cute. Yeah, तो ये हमने collection बनाई थी उन videos की, शहीरा ने बनाई थी for our kids, or I think we will share that on Facebook separately as well, क्योंकि ये this is worth watching again and again. Assalamualaikum everyone, my name is Batul. हम लोग आज यहाँ पे हैं to talk to you power moms, जिनको and there are more of you, और हम लोग इसकी mini part series करेंगे and आज पहली है. तो आज आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया इसलिए गया है क्योंकि ऑटिज्म एक ऐसी जर्नी है एंड स्पेशल नीड्स, अदर स्पेशल नीड्स एज वेल, जो कि हम एज पाकिस्तानी मॉम्स ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये एक पर्सनल जर्नी है, एक प्राइवेट जर्नी है, और सच पूछें तो ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है, और हर कोई तो अपने हार्डशिप्स के बारे में आसानी से बात नहीं कर सकता, और मगर हमको ये लगता है कि आज आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे के हम आपसे सीखना चाहते हैं कि व्हाट वर्कड फॉर यू, कैसे आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, स्ट्रॉन्ग रखा, इस जर्नी के ऊपर आपने क्या फेस किया, क्या ओवरकम किया, और हम आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट यू. आप जो शेयर करना चाहें, दैट्स व्हाट वी वांट टू नो. और आज हमारी पहली जो पावर मॉम हैं, दैट्स आर्याना. आर्याना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Hello everyone. My name is Ariana, and I'm from originally Bosnia, nowadays ex-Yugoslavia, and my husband is from Pakistan.
and we live in England, in London. So I have a son who will be 3 next month, and he's in the spectrum. Well, he was developing fine until the age of 1, maybe 14, 15 months. He was reaching all his milestones, and even in England there is this like NHS, that is a government body who expect the children every few months. So they had no concern for my son when he was born, and until 1 year, I remember very well. For his first birthday, we were coming to Pakistan, and we had the health visitor check, and he was responding to his name, and everything was fine. And then we came Pakistan, we celebrate his birthday, and when we went back to England, he started slowly to become less sociable and not to answer to his name and not to respond. In our case, we think we visited the doctor and there was some triggers with a wellness visit, and we think there was something that triggered his immune system, and then he started to go downhill. I'm a firm believer in biomedical treatments. Okay, so that's where I was going next, Ariana. So tell me what has worked for you in this journey, but it has worked with some trial and error, or how did you find what worked for you? How long have you been doing it for? Basically, shed some light. So we noticed that behavior, like when he was 1 year and a half, we'll notice the lack of imitation and lack of pointing, and then we clearly knew there was something wrong. The doctors in UK, they said, oh, it's nothing. What do you expect from 18 months old child? It's a boy. Everything is fine, whatever. And but we knew there was something wrong. So we seen a biomedical doctor, because my husband's boss had a similar experience. And at that time, we were researching vaccines, and we just asked the people about their opinions, if there is any connection, because, it's very sensitive matter, and we didn't know much about it. So we asked few people. Some people say, obviously, there is no connection, but we came across a couple of people who did experience the same what we went through, and one of them was my husband's boss. And he told us that we should see an integrative doctor, and we've seen an integrative doctor, and obviously we run few tests, and we see that, there were a lot of imbalances. So we decided to go down the biomedical route. Yeah. Then I spoke with few. Sorry? How's that working for you? If you can share a couple of lines about that. So I'm in a big favor. My son has gained his eye contact back. He's responding to his name. He's interacting. He's not that sociable, but he pick and choose with who to interact. Right now he's playing with his mamus and with his chachas. He prefer boys, but he start to follow one or two words direction. Like, if I say come to eat, or let's change the nappy, he follows some directions. He's aware of his surroundings. I can see he's there, So since we're in Pakistan, we started ABA therapy. Just for a couple of weeks now. So let's see how it's gonna go. But I believe a lot into personal interaction, like a Sunrise program, or something like more play-based. Because I think parents, we are very important in this journey. Nobody else will do what mother and father can do. Oh, yes. So basically, I mean, in UK, there is no ABA therapy. In UK, the government don't believe ABA is beneficial. They do speech therapy and OT therapy. We have been 1 year with speech therapy, and
we have no any improvement. But I've noticed that the most improvement come when I keep repeating and I keep showing to him things. Yeah. And I'm hopeful with both biomedical and some kind of therapy, things will get better. So to As we know- recap, if you were to say one thing that has worked for you, you would say it's biomedical and parent involvement. And if Yes, I was to yes. ask what has not worked, you would say it would be speech. Speech therapy, yeah. Okay. Yeah. Fantastic. All right. Well, we'll park this for a couple of minutes while we move on to That's fine. some more moms. I think मैं थोड़ा rotation में जा रही हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा if someone needs to leave or come later. हमारे पास next जो mom हैं, we have Dr. Sana यहाँ पे हैं, and Dr. Sana आप अपने आप को unmute करके आ सकती हैं इस वक्त. There you are. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. अस्सलाम. आपसे भी कुछ वही सवाल हैं. आप भी इस जर्नी में काफी सालों से हैं और सवाल कुछ ऐसे ही हैं कि आप कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्पेशली वो चीजें जिन्होंने आपको पॉजिटिव रखा, क्योंकि हम एक पॉजिटिव वे में दिखाना चाहते हैं कि हाउ हैव यू गाइज डन, ताकि दूसरी माएँ जो वहाँ पे नहीं हैं आज जहाँ पे आप मौजूद हैं वो सीख सकें. तो प्लीज शेयर विद अस व्हाट हैज वर्कड फॉर यू एंड व्हाट हैज नॉट वर्कड, और जो भी और आप शेयर करना चाहें, वी वुड लाइक टू लर्न. ओके, थैंक यू सो मच बतूल. सबसे पहले मैं ऑटिज्म रिसोर्स पाकिस्तान ग्रुप को, सारे आप होस्ट मेंबर्स, आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने ये मीटिंग अरेंज करवाई. बहुत ज़रूरी थी और शायद बहुत वक्त से इसकी ज़रूरत थी, पर शायद हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जितना ऑटिज्म कॉमन होता जा रहा है और जितनी अवेयरनेस अब पाकिस्तान में आ चुकी है कंपेयर टू लास्ट 2 years, अगर हम कंपैरिजन करें, इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि लोगों को ये पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, ऑटिज्म है, और ये शायद बच्चे बेहतर भी हो जाते हैं. क्योंकि हम में से मेजॉरिटी की जर्नीज में ये है कि हमारे बच्चे शायद उस 2 साल पहले, 2.5 साल पहले से बहुत बेहतर है अब. तो मेरे बेटे का नाम मुस्तफ़ा है, वो अब 6.5 साल का है. बहुत से लोग जो पुराने ग्रुप्स में हैं, पेरेंट्स जो अटैच्ड हैं, जानते भी हैं. बहुत से पेरेंट्स हम इसमें ऐसे हैं जिनकी हमारी जर्नी भी एक ही साथ शुरू हुई. सो मुस्तफ़ा का डायग्नोसिस 4 साल 3 माह पे हुआ था, पर मुस्तफ़ा के ऑटिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स उसको बाय बर्थ आफ्टर, मैंने उसमें 3 months की एज पर भी देख लिए थे, जो कि मैं अब उसकी अगर पास्ट में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि 3 months का भी वो था तो उसको लाइट्स बहुत पसंद थी. वो फैंस को देखता रहता था और बड़ा खुश होता था, तो हमें लगता था शायद ये लाइट्स को पसंद करता है. हम और लाइट्स लगाते थे. हम इसके बेबी कॉट, इवन आई रिमेम्बर कि इसके बेबी कॉट पर भी हमने लाइट्स लगाई हुई होती थी, कैरी कॉट पर भी. सो इस तरह नेल कटिंग ना करवाना, इसका जो पहला हेयर कट हुआ था बिल्कुल न्यूबॉर्न का जो होता है, उस पे पूरा घर सर पे उठा लिया था, और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि शायद ये डर गया है तो हम इसका हेयर कट नहीं करवाएंगे. एक घर से किसी रिलेटिव के घर जाते हुए भी वो बहुत ज्यादा रोता था, हमें लगता था नजर लग गई. सो इस तरह की बहुत सी चीजें थी, सारे साइन एंड सिम्टम्स थे, पर हमें उसके लिए हमारे रिलेटिव्स की और फ्रेंड्स की एक रीजन मौजूद होती थी. आप अकेले रहते हैं, और मुझे मालूम है कि जो मैं बातें कर रही हूँ हमें से मे बी 90-95% पेरेंट्स ने ये सब सुनी भी होती हैं. आप अकेले रहते हैं, शायद आप बच्चे से ज्यादा बात नहीं करते, आपने स्क्रीन बहुत ज्यादा देखी बच्चे को, और ये लड़का है, लड़के लेट बोलेंगे, इसका चाचा भी लेट बोला था, ये सारी वो रीजंस थी. सो टू समराइज, मेरे केस में मुझे अगर मैं सोचूं तो जिस चीज का एक मुझे अफसोस रहता है वो ये था कि मैंने उसे 4.25 साल तक इग्नोर किया, ये जानते हुए कि उसमें सेंसरी सिम्टम्स भी थे, टिप्टो वॉक से लेके हैंड स्लैपिंग, हेड बैंगिंग. मैं ऑटिज्म को गूगल भी करती थी, और मैं खुद एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक वार्ड में रेजिडेंट भी थी, और मेरे चारों तरफ बहुत फेमस पीडियाट्रिशियन थे. और असल में मसला वहीं से क्रिएट हुआ कि मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे उनको लगता था कि ऑटिज्म वो है जो बच्चे अपने आप को काटते हैं, जो बच्चे अपने आप को मारते हैं, जो दूसरों को मारते हैं, जो एक कमरे में बंद हो जाते हैं, जो किसी से बात नहीं कर सकते. सो वो मुझसे सिर्फ 2 सवाल करते, तुम्हारे पास आता है, किसी और के पास जाता है, तो बस ठीक है, ये तो सोशल है, ये दिस इज नॉट ऑटिज्म. बहरहाल काफी चीजें मतलब विद द टाइम चीजें थोड़ी सी वर्स होती गई, और ऑब्वियसली 4.25 साल पे आके
एहसास हुआ कि अब तो टाइम काफी गुजर गया, अब आपका बच्चा बोल नहीं रहा, और अब स्कूल भी, वो 1 साल से स्कूल भी जा रहा था, बट अगेन अब वो स्कूल भी जा चुका, सब कुछ हमने उसे मॉन्टेसरी में करवा दिया कि और बच्चों के साथ रह के बोलेगा। सो 4.25 साल पे स्कूल की तरफ से ही कंप्लेंट्स आई, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी वर्स हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका था। और असेसमेंट हुई, असेसमेंट में जब बताया गया कि ही वाज ऑटिस्टिक एंड ADHD फ्रॉम हेड टू टो, तो मैंने अगेन उसको डिनाई किया, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे वो टर्मिनोलॉजीज को समझना कि ये सेंसरी ओवरलोड है या ये पिकी ईटिंग है, मुझे भी याद है कि मैं पिकी ईटिंग भी गूगल करती थी कि एक्चुअली पिकी ईटिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा, तो जो मेरे बेटे की जो मुझे क्वालिटीज लगती थी कि ये तो गिरता नहीं है, ये तो बड़ा अलर्ट है, ये तो छोटी सी आवाज भी सुन लेता है, एक्चुअली वो पता चला कि वो तो बाकी अच्छी क्वालिटीज ADHD के सिम्टम्स थे। सो उस टाइम पे एटलीस्ट मुझे 4 महीने सिर्फ लगे ये चीज एक्सेप्ट करने में कि एक्चुअली नाउ दिस इज हैपेंड, ही इज ऑटिस्टिक एक्चुअली, ठीक। सो यहाँ तक तो ये हो गया। जो थोड़े से हर्डल्स रहे वो ये थे कि पाकिस्तान में अब तो काफी बेहतर सिचुएशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं, पर 2.5 साल पहले जो मेरे साथ हुआ ऐसा था कि हमें एक जगह पे बुलाकर एक डायग्नोसिस दे दिया जाता था, और उसके बाद हमें ये नहीं पता होता था कि एक्चुअली ये कोई डिसेबिलिटी है, ये कुछ बेहतर हो भी सकती है कि नहीं, ये बच्चे क्या आज नहीं बोल रहा तो कल बोलेगा भी कि नहीं, क्या ये स्कूल जाएंगे, अगर ये सब नहीं हो सकता तो हमारे लिए कौन सी जगह है, हमने क्या करना है, ठीक है। सो थेरेपीज का तो हमें पता चल जाता है कि जी ये 3 चीजें हैं, आपने स्पीच थेरेपी करवानी है, आपने OT करवानी है, आपने ABA करवाना है। अनफॉर्चुनेटली उस पर आप जब जाते हो तो आपका बच्चा तो बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं करता, तो आप एक और फाइनेंशियल बर्डन में भी चले जाते हो, और आप एक और डिप्रेशन में चले जाते हो कि हमारे बच्चे के लिए जो रास्ता था वो तो बंद है, वो तो कुछ नहीं कर रहा। सो ये सारी चीजें। देन अब मैं जल्दी आ जाती हूँ कि पॉजिटिव क्या रहा। नहीं, क्योंकि ये सब तो जर्नी बहुत बेसिकली जो आप बातें कह रही है ना, वो उनसे सारी माएं रिलेट कर सकती हैं। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन कनाडा के अंदर भी आपके गो टू मेथड्स वही हैं, ABA, OT, स्पीच, ये 3 चीजें स्टैंडर्ड हैं, और इधर भी वो अवेयरनेस नहीं है जो कि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक डेवलपिंग कंट्री से। तो पाकिस्तान में तो इनफैक्ट आप जैसी माओं को सलाम है कि आप लोग अवेयरनेस आपने सीखी और फिर फैला भी रहे हो। तो डेफिनेटली वांट टू नो व्हाट वर्कड फॉर यू। सो थेरेपीज वगैरह का ये है एक्चुअली कि दे नेवर टेल यू योर किड्स फ्यूचर, दे नेवर से अ सिंगल वर्ड। लाइक आपको वो आप अचानक से एक बच्चे को स्कूल भेज रहे हो एंड देन यू अब 4 साल से एक बच्चे के साथ बहुत थके हुए हो, क्योंकि वो बच्चा सोता नहीं, वो बच्चा खाता नहीं है, वो बहुत कुछ कर रहा था, और आपको पता चला कि वो जो कर रहा था वो तो एक मसला है, और उस मसले को भी इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि शायद ये जिंदगी भर के लिए है, ठीक है। और उसका जो सोल्यूशन है वहां पे आपको कोई एक बार भी ये नहीं कहता। मुझे लगता है, शायद मुझे नहीं आइडिया किसी थेरेपिस्ट, किसी ने, किसी और प्रोफेशनल ने किसी बंदे को कहा हो, पर मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि ये कुछ बदल भी सकता है, या फिर 1 महीने बाद ये चीजें बच्चा सीख लेगा, या 6 महीने बाद ये इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी, या 1 साल के बाद। नो, इनफैक्ट के आपको डेली बेसिस पे जब आपका बच्चा कोऑपरेट नहीं करता तो आपको ये बताया जाता है कि आज तो इसने फोकस नहीं दिया, आज तो ये पहले से भी ज्यादा बुरा था, आज तो इसको ये भी नहीं किया, इसने ये भी नहीं किया। सो मेरा हमेशा एक कंसर्न रहता था कि अगर वो ये सब नहीं कर रहा तो एक्चुअली ही इज ऑटिस्टिक, ये नहीं कर रहा, अगर वो ये सब कर रहा होता तो मैं यहाँ होती ना। सो मेरे लिए पॉजिटिव ये रहा, वहां पे आते जो मेरी सबसे पहली स्पीच थेरेपिस्ट थी, मैं उनके पास सिर्फ 1 महीना गई, और 1 महीने में भी हमने सिर्फ वंस अ वीक सेशन लिया। बहुत जबरदस्त बंदी है, उन्होंने मुझे पहले अपॉइंटमेंट में ये काउंसिल कर दिया था कि एक्चुअली जो चीजें मैं आपको करके बताऊंगी वो आपका घर पे करना जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा तो मेरे पास बैठकर तो मुझे एक चीज भी नहीं पकड़ा रहा, अगर मैं इसके साथ फोर्स करूंगी तो ये मेरे सेशन में बहुत आने से मना कर देगा, बाहर से ही रोता हुआ आएगा। तो शी सेड टू मी कि मैं ये चीज पसंद नहीं करती, तो मैं तो टाइम लूंगी, मेरे साथ ये 1 महीना लगाए या 2 महीने लगाए, मैंने इसे हाथ पकड़ के कोई काम नहीं करवाना। उन्होंने मुझे लिस्ट बना के दे दी कि आप ये ब्लॉग्स ले लें, ये सब चीजें ले लें, एंड यू नीड टू डू दिस ऑल एट योर होम। और फिर आप जब मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आए 1 हफ्ते के बाद, तो लेट्स सी कि आपने ये क्या चीजें फॉलो करनी है बेटे ने। सो 1-2 हफ्ते के अंदर मुझे समझ आ गया कि मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम जिस भी सेशन पे जाएंगे उस सेशन में वही रिपीट होता रहेगा। सो आई क्विट माई जॉब, और मैंने घर पे बैठ के जो एक 1-to-1 बच्चे के साथ काम होता है उससे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि एक्चुअली उसका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा था,
वो हमें अपने पीछे लगाए रखता था और हम उसे क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, हम उसे हर वक्त रोकते थे, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो। सो जो हम घर पे उसके साथ कर रहे थे वो सब बहुत अलग था जो उसे जिसकी जरूरत थी। सो क्या हुआ कि वो मुझे अच्छी गाइडेंस मिली, मैंने घर पे करना शुरू किया। जब मैंने घर पे करना शुरू किया, उसने फॉलो करना शुरू किया, तो मैंने देन यूट्यूब यूज करनी शुरू कर दी, गूगल, एंड देन आई कनेक्टेड विद अदर पेरेंट्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी मेरी लर्निंग वहां से भी हुई कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले जो कुछ पाकिस्तान से बाहर भी थे, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे गाइड किया कि पाकिस्तान से बाहर क्या होता है। एक दो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने शायद मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए कि प्लीज तुम ये वाला प्रोटोकॉल कर लो, प्लीज तुम ये ऑलिव ऑयल स्टार्ट कर लो, इस तरह की चीजें। सो वो लोग कुछ मेरी जिंदगी में फरिश्ते बनकर आए, एंड देन मेरा ध्यान बायोमेड की तरफ आ गया। ठीक है, सो स्टार्ट में मैंने बायोमेड इसलिए चूज की कि जो सच बात है, मुझे थेरेपीज बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। आई वाज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मच अमाउंट 2 years बैक। सो मैंने सोचा कि यार इसी अमाउंट को जो है वो इन्वेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स में, कुछ 3 months का टाइम रखते हैं और देखते हैं कि 3 months में क्या चीज। जो थेरेपी पे करने वाला काम था वो हमने घर भी किया। 3 months में हम जो है वो फ्रेजेस पर आ चुके थे, some broken words and phrases, और मुझे उससे एक बहुत ये तसल्ली मिल गई कि चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, सो मैं ये कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मुस्तफा के लिए डिफरेंट टेस्टिंग हो गई, डिफरेंट सप्लीमेंट स्टार्ट हो गए, नेमचेक प्रोटोकॉल था जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस थी। डाइट में चेंज करने से उसकी जो एक बहुत बड़ा पार्ट था उसके ऑटिस्टिक फीचर्स के साथ, वो उसका ADHD था, जो कि हाइपर एक्टिविटी, ना सोना और ना ही 1 सेकंड के लिए बैठना। सो डाइट कंट्रोल करने के बाद वो बैठना शुरू हो गया, सोना शुरू हो गया। जब वो सोना शुरू हुआ तो मुझे और टाइम मिल गया, बिकॉज नाउ आई वॉज एबल टू स्लीप। मैं कोई 4.5 साल के बाद 6 से 8 घंटे सोना शुरू हुई थी, क्योंकि वो शायद 4 साल की एज तक वो 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता था। सो देन मुझे थोड़ी एनर्जी मिली कि हाँ अब मैं और काम कर सकती हूँ, और ज्यादा मैंने उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और ज्यादा बायोमेडिकली उसके लिए, उसकी स्पीच के लिए डिफरेंट चीजें पढ़नी शुरू कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एवरी मंथ्स गेन्स मिलते रहे। और इस तरह क्या हुआ कि 4 साल से 5 साल की एज में, 5 साल तक मुस्तफा जो है वो एक वर्बल बच्चा था, नीड बेस्ड स्पीच पे, और 5 साल तक सेंसरी प्रॉब्लम से बहुत सारी चीजें थी, बहुत चीजें अप एंड डाउन भी चली। 5 से 6.5 साल तक हमारी चीजें फिर एक्सट्रीम लाइन पे आना शुरू हो गई। स्कूल वो जा रहा था, पर स्कूल में वो अलग बैठता था। 5 साल के बाद वो स्कूल में बच्चों के साथ बैठने लगा। उसके बाद उसकी टीचर्स और एक मुझे प्रिंसिपल और स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया। प्रिंसिपल के अपना बेटा डिस्लेक्सिक था, शी न्यू हाउ टू डील विद अ स्पेशल चाइल्ड। सो मेन स्ट्रीम स्कूल में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुस्तफा को टाइम दिया, उसे फोर्स नहीं किया, उसे एंजाइटी नहीं दी, काम का प्रेशर नहीं दिया। स्कूल ने मुझे बहुत अच्छा हेल्प आउट कर दिया, तो हमारी एकेडमिक्स बड़ी अच्छी चलना शुरू हो गई। मीन टाइम जो है फिर मैंने वो सिर्फ इंग्लिश बोलता था, उर्दू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई। कोविड के बाद ये हुआ कि घर बैठ गए, मेरे अलावा मेरे हस्बैंड का टाइम भी उसे मिलना शुरू हो गया। ठीक, एंड देन मैंने नोटिस किया कि अब वो चीजें जो कि थोड़ी बहुत उसकी वीकनेसेस और भी थी, वो भी हमारी कवर हो गई। सो इसमें मुझे जो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी, इनर हीलिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2, पेरेंट्स का अपना टाइम। आप थेरेपी करवा रहे हो या नहीं करवा रहे, आप अगर आप खुद बच्चे को टाइम नहीं दे सकते तो प्लीज उसको 4 घंटे की थेरेपी पे जरूर भेज दें। मुझे बहुत से पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं, तो मैं पूछती हूँ आप कितना टाइम दे सकते हो, आप उसके साथ एज अ थेरेपिस्ट काम कर सकते हो, आपसे क्वालिटी टाइम दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते, आपके 3 बच्चे हैं, 4 हैं, XYZ रीजंस, तो आप प्लीज उसको थेरेपीज पे रखो, क्योंकि वो क्वालिटी टाइम वही स्पेंड करेगा। तो अगर मैं रिकैप करूं तो आप बेसिकली आपके नजरिए से बायोमेड हैज वर्कड फॉर यू, ठीक है, इनर हीलिंग जिसे कहते हैं, और वो बायोमेड की पूरी जो है वो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम अभी उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपके ख्याल में पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि आर्याना ने भी बोला कि खुद से इन्वॉल्व होना हैज बीन वेरी हेल्पफुल, और थेरेपीज किसी हद तक हैव बीन हेल्पफुल, लेकिन उससे भी ज्यादा यू वुड से कि सपोर्ट सिस्टम हैज बीन हेल्पफुल, जिधर एक ऐसे लोग जो कि आपके बेटे की नीड्स को अंडरस्टैंड करते थे, एक्सेप्ट करते थे, एंड दे वांटेड टू वर्क विद यू, तो गिविंग हिम अ सेफ एनवायरनमेंट हैज बीन हेल्पफुल। बिल्कुल ठीक है, फैंटास्टिक। तो डॉक्टर सना, मैं आपकी बात इधर थोड़ी देर के लिए रोकूंगी ताकि अभी हमारी और भी माएँ वेट कर रही हैं, हम उनकी भी जर्नीज के बारे में सुने। आई थिंक द नेक्स्ट वन वी हैव, और मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ इस वक्त, तो bear with me. Zainab is here. Oh, Zainab Kadir, you can unmute yourself.
ज़ैनब एक्चुअली एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी होती हैं, ऑटिज्म सर्टिफाइड मॉम भी हैं, और इस जर्नी में काफ़ी सालों से हैं। तो ज़ैनब प्लीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं और अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा बेटा 11 साल का है, सो आई हैव बीन ऑन दिस जर्नी फॉर 9 years. जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ तो हम लोग उस वक्त दुबई में रहते थे। जिस तरह डॉक्टर सना ने मेंशन किया कि आई एम एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो एंड आई वाजंट वर्किंग, तो मेरा बेटा जो है वो, आपने वो जो सिम्टम्स है, आई हैड नो आइडिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑटिज्म का मतलब भी नहीं पता था। I actually learned about autism by this charity foundation कि you know you have to donate. तो जब मेरे बेटे ने साइंस दिखाना शुरू किए, सो एक्चुअली रिग्रेसिव ऑटिज्म एक चीज, 2 टाइप के ऑटिज्म है। DSM-5 ने चेंज कर दिया, विच इज द लेटेस्ट डायग्नोसिस क्राइटेरिया। जो पहले एस्पर्गर्स था, अब वो एस्पर्गर्स भी नहीं रहा, एवरीथिंग कम्स अंडर द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। लेकिन उस वक्त जो है वो अलग अलग था, डिफरेंट चीजें थी। तो उस वक्त सो रिग्रेसिव ऑटिज्म इज द वन जिसमें आपका बच्चा जो है वो 1.5 साल तक बिल्कुल ठीक रहता है, सारे माइलस्टोन अचीव करता है, और सडनली रिग्रेशन आप विटनेस करते हैं। थोड़ा सा इस केस में जो है पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू कम बैक। आपको लगता है नहीं नहीं अभी ठीक हो जाएगा, ये है रीजन। सो नो नो, आपको खुद भी एक सरप्राइज फैक्टर, शॉक फैक्टर, इट एक्चुअली इज डिफरेंट देन वो थोड़ी सी स्ट्रगल उस वक्त थी। ऑब्वियसली दुबई बीइंग प्लेस, लाइक आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे होते हैं, वो चीज, वो फैक्टर्स भी सारे इन्वॉल्व हैं। Anyways, जब मेरा बेटा 4 साल का था, he had actually a seizure. So epilepsy is 30% जो बच्चे होते हैं autism spectrum पे, they are vulnerable for epilepsy. So वो एक factor हुआ। फिर खैर, but I have been doing biomed treatment for past 6 years. और मेरे जिस तरह सबने मेंशन किया, आई थिंक पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, और आई टुक इट एज माय पैशन, एज माय जॉब, कि मुझे ये था कि एवरीथिंग अबाउट ऑटिज्म मुझे पता चलना चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी आपको हेल्प करती है। आई थिंक ऑन इमोशनल लेवल इट हेल्प्स यू। कोई चीज जिस तरह स्टिमिंग है वो आपको वैसे बॉदर कर रही है बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट इट टू हैपन, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल, और यू वांट इट टू गो अवे। once you understand, you realize why is it happening, it gives you such, I don't know, it does, you might actually to some extent want it to go away in public, but you are not, like, you're not questioning your son, you're not thinking कि ये कुछ बुरी चीज है। So इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि learning, empowerment of the parents are very important. ऊपर से फिर पाकिस्तान और in general I feel that ये हर जगह है, because I was very lucky क्योंकि हम लोग expat culture बहुत ज्यादा था दुबई में, तो I got to meet a lot of moms जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड है। तो मुझे बड़ी कॉमन चीजें नजर आई कि क्या चीज, कुछ स्ट्रगल्स जो है ना वो सबकी कॉमन होती है। एज अ वुमन कॉमन है, एज अ मदर कॉमन है, एज अ मदर ऑफ स्पेशल नीड्स चाइल्ड कॉमन है। सो बिलीव मी, when you, there's no way, वो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर एंड, हमेशा। और हुआ ये ऐसे ही क्योंकि 4 साल पहले वी मूव टू कनाडा, और फिर मुझे इधर आके इधर की माओं की स्ट्रगल्स पता चली, और मुझे ये बात का एहसास हुआ कि एक्चुअली कहीं से मेरे साथ अच्छा हुआ कि मेरा बेटा जब डायग्नोज हुआ तो हम दुबई में थे, बिकॉज उस वक्त मुझे पता था कि आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, I need to do things myself. I'm not waiting on the system, on the government, on the, so मुझे वो hands on, वो जो मुझे like by default मेरा मोड जो था ना वो था कि भाई I have to do it, you know, it's my responsibility. और people, यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है उस मोड में आने का, भाई कुछ नहीं, 3 साल वेट किया, कुछ खुद ही करना है, खुद सीखो, खुद अंडरस्टैंड करो। और this actually, so again coming back, actually मैं बोलती रहूंगी तो मैं बोलती जाऊंगी। I grew up as a in a homeopathic ये वाली एक चीज पूछना चाहती थी ज़ैनब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो बोली है ना, ये इनफैक्ट हम सारी माएँ इस बात को लेके गिल्टी होती हैं कि हम अपने बच्चों में स्टिम्स देखती हैं एंड देन वी गो लाइक नहीं इसको हमें खत्म करना है, इसे हमें हटाना है, और वी गेट अनकंफर्टेबल विद दैट। तो इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, और आई थिंक आपने यही बात बोली है कि सबसे पहली एक्सेप्टेंस जो है वो हमें देनी है अपने बच्चों को। इससे पहले कि हम उनकी एक्सेप्टेंस के लिए एडवोकेट करें, उनकी इंक्लूसिविटी के लिए एडवोकेट करें, सबसे पहली एक्सेप्टेंस, सेफ्टी और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली चीज ये है कि हम उनको एक्सेप्ट करें।
उनके ऑटिज्म को एक्सेप्ट करें, एंड देन वी गो अबाउट एड्रेसिंग इट. And you have to separate the autism from the child, which is very important. You do not have, आप एक बच्चा जो है ना, जब वो बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है ना, उसकी पूरा राइट है, and he actually, you should not try to change that. एक बच्चे की personality है, that is different than the autism itself. आप और मैं अब over the years had now, like my son just turned 11 years old, और फिर मैं पिछले 6 साल से जो biomed है, I have been to all over the places. मैं इटली के डॉक्टर का आप मुझसे पूछ लें या Dr. Anju Usman, Dr. this, you have been through so many. I have been through all the treatments step by step, and actually, so it's like it's a complicated. वो जो puzzle वाला sign है ना, मैं उसको different तरह से perceive करती हूँ. It's like it's such a complicated. It's like a puzzle for you to figure it out as a mother, and उसमें एक बात बहुत ज़्यादा important है over the years जो मैंने realize की कि एक तो first of all जिस तरह हर रोज अगर आप उठ के भी इसको पढ़े ना, तो फिर भी आपके लिए as a mother I feel that I need reminders that every child on the autism is different. Every child is different. So you have to understand जब आप success story भी देख रहे हैं या आप किसी different type की story सुन रहे हैं, then you have to come in back and realize that no, you're not supposed to compare. आपने अपने बच्चे को किसी और बच्चे से comparison नहीं करना. और मैं ये समझती हूँ कि as special needs mom, this is the first win that we have. अगर आप इसको once you are above that person, above that, then you have it all. अगर आप इस चीज में नहीं है ना कि मेरा बच्चा वो करे जो साथ वाला बच्चा कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, अगर आप में ये एक्सेप्टेंस डेवलप होगी ना, इम्प्रूवमेंट में, गेन्स में भी, जब when you talk about improvement and gains, think कि आपका बच्चा जो पिछले 4 साल पहले की सिचुएशन से, is he better? Is he moving forward? No matter how slow, no matter what is the reason, this is my responsibility as a mother कि मैंने no stone unturned नहीं कहते, मैंने हर जगह देखना है, मैंने हर चीज ट्राई करनी है, मैंने हर कोशिश करनी है as a mother, and वो उसमें learning तो, you should always learn. I keep on learning. I feel that I have yet to learn from everybody. I'm here and I'm so excited क्योंकि मुझे ये इस बात का एहसास है कि ये नहीं है कि मुझे सब पता है, मुझे पता है मेरा बेटा, you know, I can learn anything from even at this point of time. मेरी अपनी स्ट्रगल है, मेरे से आप सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगी, और हमेशा आप अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं. और मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि जब आप इंप्रूवमेंट देखें ना, तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ एज एन एडल्ट भी इंप्रूव हो सकती है. I can improve my quality of life. I can improve my behavior. I can improve my brain function. I can improve my health overall. So it's just the same. आपने जब अपने जो जिस तरह का भी काम करना है, वो हम बड़े मजे से वो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट करती हूँ, तो वो भी मैं सोचती हूँ अच्छा ये मैं अपने हस्बैंड को ये दे दूँ, इससे फायदा होगा. तो जब आप ABA थेरेपी करते हैं या सनराइज प्रोग्राम करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि ये सब पे अप्लाई होता है. You know, it's like it's all universal. These techniques, they're so handy. The learning is always useful. And the only thing wo to iski there are only two tools that you need: a hard work and dedication. So dedication to as a mother aapke bacche ke paas to wo for granted hai na, wo to it's like inbuilt in you. You're dedicated to your child and he's your priority or she's your priority. जो सेकेंड चीज है वो हार्ड वर्क है, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके, थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करके, थोड़ा सा जो अनवांटेड नॉइज है ना उसको म्यूट करके थोड़ा सा अपना करे, तो फिर लाइफ इज वेरी इजी. बट हैविंग सेड दैट, आई अग्री, I still struggle, and I feel that मैं हमेशा ये कहती हूँ, there's no closure. It's a life, is a struggle. You will have challenges. आज ये खत्म हो गया, कल हो जाएगा दूसरा. Just like every child, just like everybody's life, there's one challenge today. Yes, your responsibility is कि आप इससे मतलब improve करें और आप अपनी help करें, आप पूरी कोशिश करें कि इससे, and then there will be another. So don't forget that not only us, हर चीज में ऐसा ही है. तो अगर मैं आपकी स्टोरी को रिकैप कर सकूं, तो जैसे कि आप कह रही हैं, वही आई थिंक कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमारे बच्चे डिफरेंट हैं, उनकी नीड्स डिफरेंट हैं, और हर एक का ऑटिज्म भी डिफरेंट है. तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कभी कभी, आई एम गिल्टी ऑफ दैट, कि मेरा ऑटिस्टिक बच्चे की ये नीड्स हैं, तो लेकिन उसकी तो डिफरेंट हैं, उसकी तो बेटर हैं, तो मैं कैसे ओवरकम करूं. आपकी जर्नी बड़ी पर्सनल है, आपकी जर्नी है, तो आप अपनी जर्नी के ऊपर जो है वो फोकस करो, और बच्चे
कि acceptance और उसको एक safe environment provide करना is also very important. And your take it as an inspiration, like, you know, take it as like I could be inspired if I see some, अगर मैं देखती हूँ तो आपको ideas है ना, I'm open to even at this point of time कि भाई ठीक है, I want to see कि हर बच्चे को क्या, what work for any child. I'm open to it and I want to be inspired, I want to be motivated, and I'm happy to help and share. वो थोड़ा सा ये जो शेयरिंग का ये मैंने देखा है ना कि वो अनवांटेड, वो मुझे तो आदत है। अब पहले शुरू में एक टाइम था, सो आई एक्चुअली फील लाइक कि एक टाइम था जबकि मैंने अपने बेटे को 7 स्कूल्स में असेस कराया जब वो 4 साल का था, और मैंने किसी को नहीं बताया था कि ही इज ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, जबकि मुझे 2.5 साल से पता था और मैं उसकी थेरेपीज भी कराई थी। और आज ये टाइम है ओवर द टाइम कि आज मुझे कोई बंदा मिले तो मैं उसको 5 मिनट में वो मेरी इंट्रोडक्शन में पूछेगा तो मैं उनको बताऊंगी कि आई हैव 2 kids and my older one is on the autism spectrum, and I feel that this is my own learning, my own journey and my own learning through the journey. It's not that कि मैं उस वक्त गलत थी या मैं आज गलत हूँ, मैं ये समझती हूँ कि ये ग्रोथ है, ये आप मैच्योरिटी है, and this is a part of life, and I'm so happy कि पाकिस्तान में भी और हम as a believe me कि जब आप as an expat रह रहे होते हैं जहाँ पे भी, और even in Canada when you meet Pakistanis and आप सारों को मिलते हैं तो इतनी ज्यादा आपको चीजें एहसास होता है कि it does not matter कि आप कहाँ से हैं या क्या है, as a mother, as a child with special needs, सारी चीजें आपकी कॉमन है, आपकी स्ट्रगल्स कॉमन है, आपकी you know heart to heart connection is so common कि आप वो इतना ज्यादा फील करते हैं, because this is the village that you need for yourself more than for your child, believe me. It's like not village community. और actually डॉक्टर सना की भी यही बात थी कि उन्होंने वो सपोर्ट्स पुट टुगेदर की जो कि बच्चों को लेके हमारी एक्सेप्टिंग थे, सपोर्टिव थे, एंड दैट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. आई एम अ बिग बिलीवर इन यू नो इट टेक्स अ विलेज. ये मेरी फेवरेट लाइन है. इफ आई कुड ever create a company, it would be called It Takes a Village. It takes a village. अब हमारी next mom की तरफ आते हैं. Thank you so much, Zainab, for sharing your story with us. I just need 1 minute just to add in, Zainab की बात से मुझे याद आया कि ऑटिज्म का ये बताना, मेरे बेटे को ऑटिज्म था, ये मेरी फैमिली को अब पता चला है कि जब वो सब नॉर्मल हो गया, बात करने लग गया सब कुछ, तो मैं वाकई इस चीज से डरती थी कि शायद, मुझे नहीं पता ये कुछ कर सकेगा कि नहीं, तो नहीं भी करे तो मैं इस बात पे खुश हूँ कि वो ये कह दें कि इसके चाचा भी लेट बोले थे तो मैं कोई 6 साल तो आराम से गुजार लूंगी, 7 साल के ये भी लेट बोल रहा है. बट एक्सेप्टेंस के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद जो एक सोशल प्रेशर था कि मैं ये नहीं सुनना चाहती थी कि कोई मेरे बेटे को ये कह दे कि पता नहीं ये पागल है, और सुनने को तो मिलता था बट मैं उसको एंडोर्स नहीं करती थी. अब ये है कि जब वो बिल्कुल ठीक है सब कुछ, तो मैं अब किसी भी जगह पर जाती हूँ तो उसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताती हूँ कि ये ऑटिस्टिक है. और अभी रिसेंटली ये हुआ कि मुस्तफा का एडमिशन एक न्यू स्कूल में हुआ, तो एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसको उसकी जो है वो टेबल चेयर अलॉट हो गई, ये उसकी क्लास है. तो मैंने लास्ट डे प्रिंसिपल को कह दिया कि थैंक यू सो मच, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो ये ऑटिस्टिक है, आपको पता है. शी सेड ऑटिस्टिक, मुझे इसकी रिपोर्ट्स शेयर करें. तो मैंने उन्हें कहा यार ये रिपोर्ट्स तो 2.5 साल पुरानी है. उन्होंने सिर्फ ऑटिस्टिक सुना और उन्होंने 2.5 साल पुरानी रिपोर्ट्स मांगी और उन्होंने हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि दिस इज अ स्पेशल चाइल्ड और हम इसको नहीं रख सकते. सो आपके बच्चे का एक लेबल आपको अभी भी पाकिस्तान में, लाइक आई सेड टू दैट प्रिंसिपल, आपने इसको 3 दिन असेस किया, आपने इसकी 45 मिनट्स का टेस्ट लिया, आपने इससे बात की, आप मुझे एक पॉइंट बताएं, आपको देखने में लगा, आपको लैंग्वेज से लगा, आपको बिहेवियर से लगा, किसी चीज से नहीं लगा, तो आप इसको क्यों नहीं एडमिशन दे सकते? तो उनका एक जवाब था कि बिकॉज ही इज ऑटिस्ट. अब चाहे वो जैसा, ये बात फिर इंक्लूसिविटी के टॉपिक पे आ जाती है, जो कि इट्स अ होल डिफरेंट बॉल ऑफ गेम. तो हम उस पर भी बात करेंगे. अलीना, आई होप यू टेकिंग नोट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये जो माएँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, हम इधर इसी प्लेटफॉर्म पे इस वजह से आए कि उनसे लर्न करें. These are very important topics, but hold that thought, Dr. Sana, क्योंकि we have a few moms to get through, और हम चाहते हैं कि उन सब की जर्नी हम सुन सकें. Next we have Maheen Gul Malik. She's the founder of Lahore Autism Center. Maheen, you can go ahead and unmute yourself. Alina, are you able to see if Maheen is here? Actually, she's not here. Okay, let's move on to the next mom. We also have, hang on. Hira Ejaz
Is Hira Ijaz here? Okay, I'll keep going. तो next हमारे पास है Dr. Shama Ambreen. Do we have Dr. Shama over here? जी, I'm here. Oh, fantastic. Hi, Dr. Assalamu Shama. alaikum. Walaikum assalam. कैसी हैं आप? Please मैं go ठीक ahead. हूँ। Okay. तो जिस तरह आप में से बहुत से ने जो वो इंट्रो शेयर किया था उसमें भी लिखा होगा I have a 13-year-old son who's autistic. So अगर he was diagnosed probably he was around 3 years old when we actually started suspecting कि वो अपने जो speech और communication के milestones जो हैं उसको achieve नहीं कर पा रहा. So at that time I was in the UK for my higher studies. So वहाँ पे Go ahead. आप बोलिए डॉक्टर शर्मा. कि थोड़ा सा मतलब सिस्टम जो है वो NHS पे डिपेंडेंट होता है कि पहले वो डिफरेंट स्टेजेस से आपको चेक करके और एक लंबा प्रोसेस है जिसे फाइनली वो डायग्नोज करते हैं. तो हमजा वाज डायग्नोज्ड एट अराउंड 4.5 years of age. उस वक्त तक ये कि he was going to initially to a normal neurotypical nursery. So nursery में generally he used to be like मतलब group activities में उसके कोई इंटरेस्ट नहीं था. Although जब तक मतलब हम पाकिस्तान में थे he was quite a social person. बहुत से लोग यही कहते थे कि अच्छा नहीं फैमिली से दूर हो गया है, आप लोग बिल्कुल अकेले हो, he is an only child, मतलब बिल्कुल एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ गया है कि जहाँ पे प्रॉब्ली वो कोप नहीं कर पा रहा. तो बहुत सी चीजें जो हैं जो पहले हमें डॉक्टर सना ने भी बात की, जैनब ने भी बात की कि आपको ये चीजें होती कि अच्छा नहीं ठीक है बॉय है थोड़ा सा टाइम लेगा, डोंट वरी अबाउट इट. जब फर्स्ट टाइम हमें बताया गया कि अच्छा हमजा इज ऑटिस्टिक तो सिवाय एक हमने इससे पहले ऐसा पहले जो शाहरुख खान की माय नेम इज खान that was the only introduction to autism that we had. और उसमें तो जाहिर बात है it was a kind of a cinematic experience. तो उसमें आपको उस तरह से अंदाजा नहीं होता ना कि what you are up to कि अब आगे जाके आपके साथ होने क्या वाला है. जिस चीज ने हमें बहुत हेल्प आउट किया जो डायग्नोसिस के बाद ना एक 6 weeks का पोस्ट डायग्नोस्टिक वर्कशॉप होती है यूके में which is for the parents और उसमें दोनों को अटेंड करना जरूरी था. तो मे बी दैट वाज अ पॉइंट के हम दोनों ने रियलाइज किया कि अच्छा अनटिल एंड अनलेस के हम दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करें ये शायद पॉसिबल नहीं होगा. तो सिंस वी बोथ वर स्टूडेंट्स हम एक्टिविटीज में भी वी यूज्ड टू शफल अराउंड. ठीक है बहुत सी चीजों में हमारा बेटा हाइपर एक्टिव बहुत था. द कम्युनिकेशन स्किल्स वर ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ पॉइंटिंग वाज देयर. लेकिन ही कुड क्लाइंब अप मतलब वो टेरेस पे चढ़ के बाहर खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश कर चुका था. ठीक है वो बे विंडो खोल के शदीद सर्दी में बाहर जो है जंप करके जा चुका था. तो वी हैड टू सीक इनटू थिंग्स कि अच्छा इतना हाइपर एक्टिव बच्चा है तो इसकी एनर्जी हम यूटिलाइज कहाँ करें. स्विमिंग वाज समथिंग दैट हेल्प्ड अस. सो उस टाइम में सबसे पहले जो हम हमारे करीब तरीन जो कम्युनिटी पूल था वहां पे उसको लेके जाना शुरू किया. ठीक है अब मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को स्विमिंग नहीं आती थी. तो इट वाज माय हस्बैंड्स टास्क टू एक्चुअली लर्न स्विमिंग और फिर उसके साथ जो है वो हमजा को उन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू किया. मीनवाइल स्टार्टिंग ऑफ विद मोर देन वर्ड्स ने हमें काफी हेल्प आउट किया विद एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग. तो हमने उस पे जो है काफी फोकस्ड रहा. प्लस एक चीज ही वॉज वेरी सेंसरी, उसको स्लाइमी चीजें तंग करती थी. लेकिन गार्डनिंग में ही वॉज वंडरफुल. वो शुरू से उसको पौधे लगाने का शौक था, उसको मजा आता था. हम स्कूल जाते थे वापस आते हुए जितने पौधे थे अगर हमने उन्हें टच नहीं किया तो वो हमारा जो 5 मिनट का रास्ता था वो हम 25-30 मिनट में तय करके आते थे. बट स्टिल इट वॉज समथिंग दैट वॉज के हमने अगर नहीं किया तो वो हमारा जो रूट है वो इनकम्प्लीट है. कहीं पे हमें सूखे पत्ते मिलेंगे हमने उनके ऊपर जंप जरूर करना है. पानी का पडल है हमने उसमें जंप जरूर करना है. और यूके का वेदर जिस तरह का था वहां पे इस तरह की चीजें आपको वाफिर मिलती थी. Oh, big time. वापस
वापस आके मतलब we came back when Hamza was around 7.5 years. अच्छा, वापस आके I'm currently in Lahore. और उस टाइम में जब मैं वापस आई हूँ, it was back in 2014. तो थोड़ा सा जो है वो मसला ये होता है कि यहाँ पर आपको किस जगह आपने जाना है, ठीक है, whom to seek advice, कि आपके पास अच्छा ठीक है, हम we are looking for inclusion, बच्चा पहले भी इंक्लूसिव स्कूल में ही पढ़ता रहा है विद अ शैडो टीचर सपोर्ट और समथिंग, यहाँ पर somehow आपको चीजें उस टाइम में जो है वो टैप करना और भी मुश्किल थी कि आपको ऐसे मतलब somehow किसी ने गाइड कर दिया, अच्छा वहां ट्राई कर ले, सिंस हाइपर एक्टिव था सारा दिन उसने टीचर्स को भी दौड़ाए रखना, तो वो जो था उस वक्त फोकस नहीं हो पा रहा, काम कुछ नहीं हो पा रहा, करते करते फाइनली वी लैंडेड इनटू एन इंक्लूसिव स्कूल और उधर जो है हमजा अब इट्स लाइक हिज 5th ईयर देयर नाउ, तो वहां पर ये कि ही हैज अ शैडो टीचर सपोर्ट, लेकिन सिंस ही इज एन ओनली चाइल्ड, जो सबसे ज्यादा एडवांटेज उसे हुआ है कि स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज थी, स्विमिंग थी, और जो उसके पीयर्स हैं दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। तो अपने एज के बच्चों में रह के जो है उसने बहुत सी चीजें सीखी। ही वाज अ पिकी ईटर, लेकिन जब बाकी बच्चों को चीजें एक्सपेरिमेंट करते देखा है उसने, इवन लंच बॉक्सेस शेयरिंग और इन चीजों में, तो नाउ ही इज नो मोर अ पिकी ईटर, अब वो खा लेते हैं। लेकिन जो पिछले तकरीबन 10 सवा 10 साल का टाइम है, तो उसमें एक एक चीज को ना एक एक चीज आप पकड़ते हैं कि अच्छा ठीक है नाउ दिस थिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, उसको आप करते हैं, फिर आपको पता चलता है अच्छा नहीं अब आगे आगे और जो है, एंड सिंस ही इज ग्रोइंग अप, छोटे बच्चे को आप आराम से हैंडल कर लेते हैं, व्हेन दे ग्रो टॉलर देन यू, तो आपके इश्यूज जो है वो और भी डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब देन यू हैव टू बिकम देयर फ्रेंड्स एज वेल, और कहाँ पे जो है वो यू हैव टू डिफाइन कि जी यू आर द पेरेंट एंड यू नीड टू बी लिसन टू। तो इसी मतलब ज्यादातर चीजें जिन चीजों ने हेल्प आउट किया, एक तो ये कि एक्सेप्टेंस, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, मतलब एक, और शुरू से बहुत से लोग मुझे कहते हैं तुम हर जगह जाके अपनी ऑटिज्म वाली कहानी शुरू कर देती हो, यहाँ पे लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ठीक है वी ऑल आर डिफरेंट समहाउ। और मेरी बास कोलीग्स इवन ये कहती थी कि जब आप बातें करती हैं ना तो हमें लगता है हमारे अंदर भी बहुत से ट्रेट्स हैं और हमारा ना डायग्नोसिस नहीं हो सका, तो वो मे बी ऑल आर डिफरेंट, और हम सबकी जो जर्नीज हैं ठीक है उसमें कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, ज्यादातर लोग जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा मे बी हम में जो है वो ट्रेट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही चीजों में ना एक्सेप्टेंस जो है दैट इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड अस अबव एवरीथिंग एल्स। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में मैंने बायोमेडिकल एज सच यूज नहीं किया, लेकिन कंट्रोलिंग शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड इट हैज हेल्प्ड। मतलब प्रोसेस्ड फूड जो है वो इट इज ओनली यूज्ड एज अ ट्रीट, और वो भी बहुत थोड़ी अमाउंट में। मतलब जाहिर बात है आप बच्चों के साथ 100% उसको एलिमिनेट नहीं कर पाते, लेकिन आई हैव सीन कि इट डज वंडर्स कि आप जो है बेसिक काइंड ऑफ फूड, ठीक है, विद वेरी मॉडरेट मसाला एंड एवरीथिंग, और उसमें जो है शुगर जो है वो जितना कंट्रोल कर सकें उतना बेहतर है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शमा, आपने इतनी ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है हमें चीज़ों के लिए। एक कॉमन थीम जो अभी भी आ रहा है वो यही है कि एक्सेप्टेंस है, और दूसरी चीज़ जो डॉक्टर शमा ने स्पेल आउट नहीं की लेकिन उनके बातों से मुझे एहसास हुआ वो ये कि हमारे बच्चों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एंजॉय करना। उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे बच्चे पत्तों में खेलना एंजॉय करते हैं तो वो भी खेल रही हैं, पानी के पैडल्स में जंप करना एंजॉय करते हैं तो उस चीज़ को भी एंजॉय करना। हर चीज़ स्टिम नहीं होती, जस्ट बिकॉज हमारे बच्चों को ऑटिज्म है या कोई और स्पेशल नीड्स है तो इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि हमें सारी हैबिट्स को जो है वो अंडर दैट लेंस देखना है। एक्सेप्टेंस हमारी तरफ से आएगी और हमें अपने बच्चों की इन छोटी छोटी मासूमाना ख्वाहिशों को एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि उससे ही लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी बनती है और उससे ही इंटरेक्शन डेवलप होता है जो कि हम एज पेरेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फाउंडेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमा। So next, Batul, before you move, I would like to say something. Go ahead, Shahira. Also, happy birthday to Shahira. Actually, I would like to appreciate Shama. Shama, thank you so much for talking about owning and accepting. You know, मैं हमेशा ये concern parent का सुनती हूँ कि inclusion कब आएगी, but on the same hand मैं ये भी सुनती हूँ कि अक्सर parents को कि हमारे बच्चे में कोई problem है, please do not share with somebody else. So inclusion कब आएगी जब हम अपने बच्चे को खुद ही own नहीं करेंगे,
So I really appreciate your thought process जो आपने बात की है. I really appreciate it and thank you so much for speaking up for that. और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि सब मदर से, यू गाइज आर हियर बिकॉज ऑफ योर चाइल्ड, राइट? आप सुपर मॉम्स कहलाई जा रही हैं अपने बच्चों की वजह से. सो एज अ ऑडियंस आई वुड लाइक टू हियर कि आपके बच्चे में सबसे बेस्ट चीज क्या है. सो प्लीज टॉक अबाउट दैट. थैंक यू बतूल. No problem. Thank you so much, Shreya. Actually, very good point. हम ये सब सुनना चाहेंगे कि आपके बच्चे का बेस्ट पॉइंट क्या है, ताकि हम सेलिब्रेट करें. हम आपको और आपके बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं. हमारे पास नेक्स्ट जो मॉम है, एंड वी स्टिल हैव अ फ्यू मॉम्स टू गो, सो लेट्स जस्ट कीप गोइंग. वी हैव Mona. Is there Mona here? Okay. We also have Tayyaba Tahira. If you're here, please unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम Tayyaba. जी मेरा जो है जर्नी जो है वो सिमिलर है बाकी मदर्स की तरह, सेम लाइक ज़ैनब की भी मैंने बातें सुनी तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये हमारी ही कोई स्टोरी हमें सुना रहा है. तो मोस्टली मदर्स की जो है वो स्टोरी वो मिलती जुलती हैं. और जब फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है तो वाकई हमें अवेयरनेस नहीं होती. और ज़ैफा का भी सेम यही है कि वो 11 ईयर्स ओल्ड का है और 9 ईयर की मेरी भी सेम ज़ैनब की तरह वैसी ही जर्नी है. और सेम स्टेजेस हैं सब मदर की, और वही है एक्सेप्टेंस, डिनायल स्टेज में जाना, डिप्रेशन, और फिर उसको इस चीज को मान लेना कि हाँ ये चीज है, इस पर रिसर्च हो. और कुछ मदर्स के साथ मिसडायग्नोज की भी स्टेज आती है, लाइक कुछ कह रहे कि ASD, लाइक उन्होंने भी जैसे बताया कि उस जमाने में लाइक काफी चीजें पता थी. एस्पर्जर कोई कह रहा है, कोई ASD कह रहा है, कोई DD कह रहा है, डेवलपमेंटल डिले, कुछ इतनी चीजें. अब किस किस के बारे में पढ़े, और एक सिंपल FA BA पास बंदी को क्या पता कि स्पेशल नीड क्या चीज होती है और क्या. तो सेम लाइक मदर सारी एक ही मैं कहती हूँ कि स्टेज से गुजरी. उसके बाद फिर फैमिली बैकग्राउंड में भी यही होता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है, और कुछ दूसरी बीजी फैमिली के साथ ये है कि जी बताना नहीं किसी को, और लोग क्या सोचेंगे, ये वो ये सारी चीजें. तो सबसे पहले जो एज अ मदर मेरा जो था वो ये था कि मैंने सबसे पहले खुद को ये एक्सेप्टेंस दी कि मेरा बच्चा डिफरेंट है तो वो है. दूसरा लर्निंग ज्यादा सीखना. मोस्टली यहाँ पे क्या मिसगाइड ये होता है कि जी पेरेंट्स कहते हैं कि जी थेरेपिस्ट हैं, आपने जस्ट बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना है. आप छोड़ गए थेरेपिस्ट के पास, आपने 1 घंटे बाद ले लिया, क्या 5 मिनट का उसने फीडबैक दे दिया, विच इज रॉन्ग. आई थिंक के पेरेंट को 24 आवर्स अगर पेरेंट है बच्चे के पास तो उसको हाउ नो होनी चाहिए कि उसने कैसे अपने बच्चे को डील करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी चीजें करनी है. तो लर्निंग जो है वो बेसिक पार्ट है पेरेंट के लिए. अब कुछ पेरेंट है जो एजुकेटेड हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी हैं, जो कि ये सोच लेते हैं कि जी हाँ सीधा पढ़े लिखे है नहीं, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते कुछ भी, या बच्चे का कोई दिमाग में मसला है, बस ऐना पता दिमाग में मसला. अब उनको उनके लेवल पे जाके अगर कोई बताने वाला हो, जो कि मेरी अब आजकल यही कोशिश होती है कि कोई भी मुझे पेरेंट मिले, फादर मिले, मदर मिले, कोई भी मिले, उसके बच्चे में अगर प्रॉब्लम हो, मैं नहीं दिखती कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है कौन नहीं, मैं चली जाती हूँ जी उसको गाइड करने के लिए. इसको ये कहते हैं, इसको ये है, ऐसे है, आपको ये चीजें करनी चाहिए और ये करनी चाहिए. तो अगर ये सारी मदर्स अगर इस ट्रैक पर लग जाए ना, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अवेयरनेस हो जाएगी कि ऑटिज्म है क्या चीज, MCC क्या है, CP चार्ट किसको कहते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है. हम मदर्स को माशाल्लाह बहुत पता है. तो हम जो है वो बेस्ट रोल कर सकते हैं एज अ टीचर इस चीज में. फिर उसके बाद जी मेरी भी वर्किंग वैसे हुई जैसे बाकी सारी मदर्स की हुई. मैंने पढ़ा भी बहुत, रिसर्चेस भी बहुत की. फिर मैं होम स्कूलिंग में भी सेम ये चीजें हुई कि स्कूल के लिए गई तो बेटे को ADHD था और ऑन सीट बिहेवियर नहीं था, नो नेम टू रिस्पॉन्स, सेम लाइक कोई सारी चीजें. फिर स्कूल लेके जाना, फिर उनकी रिजेक्शन कि जी ऑन सीट बिहेवियर नहीं है, तो उछलता रहता है, हवा में ही रहता है, ये तो आता नहीं है वो. फिर होम स्कूलिंग खुद की, उसकी 2 आवर्स में ऑन सीट बिहेवियर पे उसका काम करके फिर जनाब उसके इंटरेस्ट को ढूंढा. इन बच्चों के इंटरेस्ट होते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मदर को सबसे पहले पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है. हुज़ैफा का इंटरेस्ट था इसके फोनिक्स में, साउंड्स में,
फोनिक्स पे जब मैंने उसका काम किया तो उसके ना वर्डिंग क्लियर होना शुरू हो गई, उसके बाद उसकी रीडिंग इम्प्रूव होना शुरू हो गई, और व्हेन ही वाज 4.2 तो उसने सारे साइन बोर्ड्स पढ़ना शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर को खोलता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर बैठकर वो रीड आउट, लाइक स्पीच भी आ गई खुद ही ना। तो वो उसका इंटरेस्ट उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज कर करके, और जो उसके एकेडमिक्स पे काम किया, फिर 4 ईयर का था तो फर्स्ट टाइम स्कूल के लिए गई। अच्छा ये बड़ा मजे का एक्सपीरियंस है मेरा। इब्ने सीना की पढ़ी हुई प्रिंसिपल, और वो गया उज़ैफा साहब वहां जाके सारे बोर्ड्स पढ़ लिए, सारे जो चार्ट्स लगे हुए थे सब पढ़ लिए, प्रिंसिपल के ऑफिस में सब कुछ पढ़ लिया। वो मुझे कहती हैं इसमें ना कुछ सुपर पावर है, आप इसको दम दुरूद करवाएं। मैं वहां से आगे मैं कुछ समझ नहीं आई। एंड वो इस तरह जर्नी करते कराती, वो मेडिसिन मैंने भी उसकी यूज नहीं की कोई, 8 ईयर के बाद ही मैंने स्टार्ट की। उससे पहले मुझे ये था कि इसको फिजिकली, ADHD बच्चों को फिजिकली और मेंटली थकाना जरूरी होता है, और इसमें ये है कि शुगर लेवल कम करना होता है, जैसे बाकी मदर्स भी जानती हैं, और नेचुरल चीजें वगैरह उसको दी, काफी चीजें मैंने उसकी जो है स्टॉप की, बायोमेडिकल का भी यूज किया, 2 ईयर किया हार्डली, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं उसको एलियन नहीं बना सकती, ये नहीं खिलाना वो नहीं खिलाना, ब्राउन शुगर देना ये वो, या तो हम एज ए जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो या तो हम भी वही चीज यूज करें, हम भी वही आटा खाएं, वही चीनी यूज करें, या तो फिर एक ही माहौल। मदर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अलग से उसको एक उस तरह की प्रोटोकॉल देना। फिर उसके बाद जो उसके इंटरेस्ट ढूंढे, जैसे मैंने पहले बताया, फिर म्यूजिक का शौक मैंने उसमें देखा, फिर उसको मैंने वो ट्रिगर मैंने पकड़ लिया, उसके बाद म्यूजिक सर रखे, वो माशाल्लाह पियानो बजाता है, 7-8 धुनें वो बजाता है, राहत फतेह अली खान की, आतिफ असलम की। फिर स्विमिंग का इंटरेस्ट देखा उसमें। अब ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, ये काफी चीजों को सॉर्ट आउट कर रही होती है, लाइक इसमें बच्चा सोशलाइज भी हो रहा है, बिल्कुल इसको बिल्कुल वो लर्निंग भी कर रहा है, सेल्फ सूदिंग भी कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी ले रहा है, उसको मोटिवेशनल मोटिवेट भी मिल रही है, लाइक अदर पेरेंट्स की तरफ से कि कितना अच्छा ये बजा रहा है ये वो। फिर मैंने एज अ मदर ये सोचा कि मैं जिन जिन चीजों में इसको इंटरेस्ट है ना, उसको एज अ रीइंफोर्समेंट लेके उसको चलते जाना है, मूव ऑन करते जाना है। फिर ढूंढना, अच्छा जी हॉर्स राइडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा, हॉर्स राइडिंग की तरफ उसको वो कर दिया। माशाल्लाह वो 8 साल के बाद वो इतना फंक्शनल हो गया, लाइक समटाइम तो मुझे लगता है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से ही बाहर आ चुका है, माशाल्लाह। और स्पीच भी माशाल्लाह उसकी बेटर है। कुरान की तरफ भी लेकर गए उसको, नौरानी कायदा हिफ्ज करवाया, और 3 साल में हिफ्ज करवाया। लाइक ये बच्चे घोड़े नहीं है जिनको पेरेंट्स कहते कोई मैजिक स्टिक को हम घुमाएं जी हमारा बच्चा फटाफट ठीक हो जाए, नहीं, बड़े पैशन से, बड़ा उससे कि नहीं आराम से कर ले। 3 साल लगे नौरानी कायदा उसको पढ़ने में, फिर उसको हिफ्ज हो गया। उसके बाद मैंने उसको मूव ऑन किया। अब माशाल्लाह 6 कलमे उसको आते हैं, नमाज आती है पूरी, ये वो। लाइक आप इन बच्चों को रिलैक्स रह के अगर लर्निंग की तरफ लेके जाओगे ना, तो ये बहुत अच्छा पॉप अप करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं सब मदर्स को कहती हूँ, दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को कंपेयर मत फेयर करें। ना करें। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा बताएं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि वो डिफरेंट हैं तो वो हैं, ये उनकी पहचान है, ये हमारी पहचान है। मुझे लाहौर में मेरे नाम से शायद कोई जानता हो, ज़ैफा की मदर के नाम से सारे जानते हैं, इसी वजह से कि मैं उसको परफॉर्म करवाती हूँ, स्टेज पे लेकर आती हूँ। और एक दफा वो भागा स्टेज से, 2 दफा, 3 दफा, 5वीं दफा उसको पता चल गया कि नहीं जी मैंने परफॉर्म करके ही जाना है, माँ ने तो मेरा पीछा छोड़ना ही नहीं है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये माँ से आता है। और माँ जो होती है ना, जितनी भी स्पेशली मदर्स है ना, वो एक पपेट है, उन्होंने खुश रहना है, बच्चों ने खुश रहना है, वो स्ट्रेस फ्री रहेंगी, बच्चे स्ट्रेस फ्री, उनमें कॉन्फिडेंस होगा, बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आएगा। मदर स्ट्रेस फ्री है, बच्चे जो है बहुत जल्दी फील करते हैं, रिग्रेट करते हैं, और ये हमारे फेस रीडर हैं, हमसे बहुत ज्यादा अटैच है, जितने ये हमें नोटिस करते हैं वो बाकी बच्चे नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, एक और बात कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जितनी भी मदर्स रहती हैं, उनको उनकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, मुझे भी की, मेरी फैमिली की। और दूसरा ये कि हम जो हैं रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। ये रीइंफोर्समेंट अगर हम साथ वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे बच्चों पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। मतलब तो हमें, हमारे बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं, हमारे साइड पे हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं है, हम गार्डन्स में जा जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई इससे दोस्ती कर लो, ये सोशलाइज हो जाए, ये सारी चीजें ये वो। तो जहाँ पे हमें बेनिफिट है वहां पे हम भी रीइंफोर्समेंट यूज करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और एक्चुअली एक्चुअली हुज़ैफा की, वी ऑल्सो हैव हुज़ैफा की वीडियो जो कि हमसे मिस हो गई समहाउ कंपाइलेशन में।
तो I think Alina said she wants to play that ताकि हम explain कर सकें लोगों को कि जिस बारे में आप बात कर रही हैं. Alina, can you play that for us? He plays so well. इनका बेटा और फेमस है ये, हर तरह का तबला बजाती है. देखिए Thank you so much तैयबा, आपने जो शेयर किया, well done. एक जो आपने किया है that is amazing. टैलेंट उनका नजर आ रहा है हुजैफा का यहाँ से, और इंशाल्लाह उनकी टैलेंट की धूम दुनिया में मचेगी. इंशाल्लाह. बस ये है कि बाकी मदर्स को एक ही मैसेज है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को नहीं, उसकी एबिलिटीज को ढूंढें, फाइंड आउट करें, उस पर थोड़ा सा उसको पॉलिश करें और फिर देखें बच्चे कहाँ तक जाते हैं, और वो आपकी पहचान बनेंगे इंशाल्लाह. Inshallah. Thank you so much. That was so refreshing. जो आपने perspective share किया, that was so inspiring. और I think अगर मैं recap कर सकूं तो हम parental involvement को एक next level पे लेके चले गए हैं अभी. Parental involvement जैसे कि ये explain कर रही हैं तैयबा is intuitive parental involvement. उन्होंने अपने बच्चे के interest को देखा कि वो किन चीज़ों में interested हैं, फिर उन interest को निखारा. और हमारे बच्चे एक्चुअली म्यूजिक में बहुत बहुत अच्छे होते हैं. म्यूजिक, आर्ट्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर उनको क्रिएटिविटी अपनी डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करने को मिलती है, दे आर रियली ग्रेट इन इट. एंड ग्रेट पॉइंट अबाउट जॉइंट फैमिली सिस्टम एज वेल. So we have one more mom over here. Well, we actually have a few, so I'm trying to get through as quickly as possible. We have Shireen. Is Shireen here? Hi, Shireen. Assalamu alaikum. Please go ahead. Walaikum assalam. Can you hear me properly? Yes. Okay, so I'll tell you a little bit about my daughter. My 9-year-old daughter, Anaya, is full of life, a passionate baker. She loves to sing, dance, paint, and plans the best parties. She loves to swim, play with friends, and is my greatest teacher. So I start with this because the truth is that I think she has taught me more than I will ever teach her. So my daughter has been diagnosed with dyspraxia. It's also called developmental coordination disorder. And it's a motor skills disorder. And she has difficulty coordinating movements, but has normal intellectual abilities. Iske saath jo I would say ke challenges aaye hain, difficulties, wo uske academic progress, social interaction, emotional development mein hai. So I had seen signs earlier on, but we just, because of the lack of awareness, did not know ke what it fell under. I tried to look up autism, but usme nahi aa raha tha. We went to countless pediatricians. Even they had no idea. They said that there's nothing wrong, but I could see his struggle. What I would say here, because most of the mothers here who are super moms have spoken about their struggles, they were very, very similar regarding, getting a diagnosis. And I feel like because of the lack of awareness, wo jo early intervention hota hai na, that everybody talks about, wo to khatam ho jata hai, because by the time the child is diagnosed, the early intervention time is gone. But what I can say that I have learned is to listen to your child. It doesn't matter whether it's a special needs child or a neurotypical child. I feel if you can just let your child be your guide, and you cannot go wrong there. So I remember just observing her, and just, I could see that she liked to jump, she liked to hang from things, she liked to climb things. So I tried to make her do those activities as much as possible. I never stopped her from,
climbing things because काफी लोग कहते थे गिर जाएगी, but I used to be like, no, I'll be with her. But I gave her the confidence to do what naturally came to her. And I think she has taught me a lot. मैं तो सबको कहती हूँ कि जितना मैंने डिस्प्रैक्सिया के बारे में सीखा है वो मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है, और शायद मैंने उसको इतना हेल्प नहीं किया हुआ, because every time I learn I feel she's grown and I need to learn more. So इसलिए मैं उसको अपनी टीचर मानती हूँ, और मैं ये इनिशिएटिव लेती हूँ कि बाकी अम्मियाँ जो हैं जो मेरी तरह हैं, because I do feel dyspraxia. I mean, I still haven't come across a single mother with a child with dyspraxia in Pakistan. So that's the sad part. But I feel like I don't want any other mother to go through the loneliness or be alone in the journey. So I decided to create a group called Dyspraxia Pakistan, and I'm working on that just to create awareness regarding this. But other than that, I think the main point is just listen to your child and be their best and strongest advocate, because I think parents ke alawa aur koi bhi nahi stand up karega. Even if you go into an inclusive environment, if you're not there, you know, advocating for your child, no one else will. So parent empowerment for me is very important. I learned everything about dyspraxia through books, information. I remember studying it and understanding the sensory needs. I had no idea what sensory needs were, but I feel like the knowledge I've gained because of my daughter, I would never want to go back. I don't want to unknow those things. So for me, children, मैं जब बच्चों को देखती हूँ, I don't look at them as special needs children. I just see every child having a different brain. And if you can just look at every child that way, automatically ये जो stigmas और ये है, ये हट जाते हैं. और मेरे लिए तो I'm most passionate about inclusive education, because I have had a lot of trouble settling my daughter in, despite a lot of people saying ke, but she's fine, isme kya masla hai. But when we do go to school, we have been rejected by many schools because of her, you know, disabilities, hyperactivity. And at the moment we're in a good place, but I've become passionate about the cause कि inclusive education के लिए हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए, and I think mothers can do that. So you know, I'm always there. Whenever I hear the word inclusive education, I'm there, front line pe, anything. And so yeah, I think that's the yeah. Thank you so much, Shireen. आपने एक जो बात, again, if I'm to recap, जैसे मैं आपकी बातें समझ रही हूँ कि parental involvement अपनी जगह है, लेकिन आपने knowledge भी अपनी बढ़ाई. अक्सर मैं पेरेंट्स को जो न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो डिसऑर्डर, उसके अंदर वो ये होता है कि हमें इलाज बता दें, हमें दवा बता दें. और मैं ऐसे जुमले सुन के मुझे एक्चुअली पैनिक होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि नहीं, आप एक बहुत बड़ा पीस मिस कर रहे हैं. आपका बच्चा आपका टीचर है, आप दूसरों से ना पूछें, अपनी नॉलेज के लिए पूछें, लेकिन ये ना कहें कि जी हमें इलाज बता दें, हमें डोज बता दें. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन चाइल्ड. ये आपके उस्ताद हैं इस पूरी जर्नी में. Thank you so much for doing that. True. Thank you so much, Alina, and all of you for having us here. And we will be with you, क्योंकि हम एक inclusivity के ऊपर भी करना चाहेंगे, and I would love to hear from you again. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Shireen. Okay, we still have a few more moms to get through. Do we have Benazir? Benny? I think we all know her as Benny. Yes, I'm here. You're here? Yeah, because I was seeing you before. Assalamualaikum, Benazir. How are you? Do you prefer to be called Benazir or Benny? The way you like it. Well, thank you so much for being here. आप please थोड़ा सा हमें share करें, जैसे कि दूसरी माओं ने भी किया है. Because first of all, thanks, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैंने लोगों से बात करनी है और इसी तरह बड़े फोरम पे करनी है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने खुद ही एक मौका बना दिया. तो कहानी तो मेरे पास बहुत लंबी है, लेकिन डेफिनेटली आपके टाइम में कोशिश करूंगी कि कुछ गाइड कर सकूं. अच्छा, यहाँ पे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, और मेरी पहले भी एक बेटी है न्यूरोटिपिकल, वो भी डे केयर गई थी. मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि क्या इश्यूज बाहर छिड़ सकते हैं.
हुआ ये कि मेरी बेटी जब 2 साल की थी तो उस वक्त हम लोगों का ऑफिस शिफ्ट हुआ और एक ऐसे डे केयर में चले गए जो कि मोल्डी था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरी बेटी को कुछ मोल्ड के सिम्पटम्स आए, लेकिन हमें कतई पता नहीं था कि ये कोई सिम्पटम्स होते हैं। मसलन यूरिन के लिए वो बार-बार कहती थी, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं था। इस तरह के सिम्पटम्स कुछ ना कुछ आए थे। लेकिन साल बाद चले गए तो बस आई रात, वो क्या कहते हैं ना, आई गई हो गई बात और खत्म। लेकिन मैं वहाँ जाके थकना शुरू हो गई थी और मैं समझी कि शायद मेरा ये ऑफिस अब दूर है और इसलिए मैं थक रही हूँ। मेरी स्टोरी में हुआ ये कि मैं पहले इफेक्ट हुई हूँ, ठीक है, और एक मेडिकल रीजन थी। अच्छा, उसमें ये हुआ कि मैं इफेक्ट हुई और उसके बाद मेरे जो रूट कनाल वगैरह भी होना शुरू हो गए। ये इवन हमजा के पैदा होने से पहले ही हो गया था। लेकिन बहरहाल प्रेगनेंसी हमजा की भी बड़ी जबरदस्त गई और नॉर्मल जिस तरह, मतलब पहली बेटी भी सिजेरियन से हुई थी, ये भी सिजेरियन से हुआ, सब कुछ सब सेट चल रहा था। 1 ईयर तक हमजा वाज ग्रोइंग एंड थ्राइविंग जैसे कहते हैं, कोई मसला नहीं था, ठीक है। 1 ईयर पे जाके इसकी MMR वैक्सीन हुई, क्योंकि हमने कोई डॉक्टर को विजिट किया होगा तो उन्होंने कहा कि आप इसको 12 या 15 मंथ्स पे लगाने के बजाय आप आए हुए हैं, तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ये डिसीजन लेते हैं कि ओके आप 12 मंथ्स पे ही लगा लें, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत डेविस्टेटिंग था उस लेवल पे। जबकि हमजा बेबी होते हुए ही मोल्ड से, क्योंकि वो उसी डे केयर में जा रहा था, तो क्योंकि उसका एक्सपोजर चल रहा था और फिर MMR वैक्सीन, मेरा ख्याल है ये डेविस्टेटिंग था। उसके बाद इसको कुछ इन्फेक्शंस भी हुए, मसलन इसकी चिकन पॉक्स वगैरह की वैक्सीन भी हुई थी, इसके बावजूद इसको हुआ, हर्पीज इन्फेक्शन हुआ। हम हैरान होते थे कि बड़ी बेटी को तो कभी इस तरह से इन्फेक्शन नहीं हुए, लेकिन हमजा को उस टाइम पे इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, ठीक है। और ये 1.3 इयर्स का था जिस वक्त अच्छा, फिजिकल माइलस्टोन, स्लीपिंग, ईटिंग, कुछ डिस्टर्ब नहीं था, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं था। जो पहली चीज जो सामने आई 1.3 पे जाके, वो एकदम से लॉस्ट हुआ, और ये कह सकते हैं कि ओवरनाइट हुआ। मैंने भी इसको ले लिया होगा कि बच्चे कभी कभी इस तरह से हो जाते हैं और टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं, ये वाली कहानी थी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसको, मुझे जो अब मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, ये अचानक से हुआ था, ठीक है। उससे पहले तक ये बिल्कुल हैप्पी बेबी और सब कुछ था। फिर इसने एकदम से मेरी फ्रेंड्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब जिनसे रोज मिल रहा है उनको भी देखना नहीं चाहता था, उनके पास जाना नहीं चाहता था। कोई डिफरेंट मेड इसको प्यार कर ले तो रोना शुरू कर देता था। और जो है बच्चों में बैठ के एक्टिविटी नहीं करता था। जो फर्स्ट साइन जो बस हमने देखा ना कि ये बच्चों में बैठ के एक्टिविटी नहीं करता था, कोई 2-3 ब्लॉक्स लेके जाके शू रैक के पास बिल्कुल गेट पे खड़ा हो जाता था। तो ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन बहरहाल मेरी फ्रेंड ने जब 1.5 इयर्स पे कहा कि अगर ये अभी तक नहीं बोला तो ले जाओ इसको चेक करने के लिए, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया। हम पेरेंट्स वो थे जो डिनाइल में रहने वालों में से नहीं थे। हमने देखा कि 2-3 साइंस नजर आ रहे हैं और वो कह रही है कि बोल नहीं रहा, तो जाओ। हमने उठाया और भागते हुए गए कि ठीक है देखते हैं। और वही वाली बात, मैंने जैसे कहते हैं ना, रिलेटिव्स ने कुछ कहना, कुछ डॉक्टर्स ने कहना, आप जबरदस्ती इन्वेंट कर रहे हैं बच्चे में, ये सब जुमले मैंने सुने हुए। लेकिन इसके बावजूद शायद हमजा की किस्मत अच्छी थी, हम जबरदस्ती पहुंच गए डायग्नोसिस के लिए और डायग्नोसिस मिल भी गया हमें, ठीक है। जो ट्रेट्स होंगे चेक करने वाले, कार्स टेस्ट हुआ और उन्होंने कह दिया कि ही इज ऑटिस्टिक। बहरहाल जब थेरेपी स्टार्ट हुई तो ही वाज परफेक्टली फाइन, बहुत जबरदस्त, जल्दी जल्दी गेन्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, अगर मैं अब यहाँ पे कहानी को थोड़ा सा कट करूं, ऑटिज्म हमजा का फॉल्स डायग्नोसिस था। ही एक्चुअली हैज पैंस एंड पैंडास। ये बेस्ड ऑन इन्फेक्शंस होता है। हमजा को मोल्ड एक्सपोजर और शायद मोल्ड एक्सपोजर के बाद जो उसकी वैक्सीनेशन वगैरह हुई, उसने बड़ी अच्छी तरह पुश कर दिया इसको इस वर्ल्ड में। पैंस एंड पैंडास बेसिकली इन्फेक्शन से हो सकता है और बहुत कॉमन किस्म के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ये एक फ्लू से भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत स्पेशल रीजन होना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स लर्न कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये किसी छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी हो सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी रीजंस मत ढूंढा करें, ठीक है, कि मुझे तो समझ नहीं आई कब हुआ कब नहीं हुआ, बस छोड़ दें। जब बच्चे को आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो अब आपने उसको हील करना है। और पैंस एंड पैंडास इंटरनेट पे तो आपको बहुत मिलेगा कि ये टाइम के साथ भी ठीक हो सकता है, बट इट्स मोस्टली नॉट द केस। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल चीज है, और जब मैं डॉक्टर से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये टाइम के साथ वर्स्ट होता है। और मैंने देखा भी है, मैंने खुद देखा है कि ये टाइम के साथ वर्स्ट होता है। मैं शुरू में समझती थी कि हमजा को सिर्फ पैंस है,
खैर ये तो सारा डायग्नोसिस हुआ ही पिछले 1 साल में है। उससे पहले तक मैं भी बड़ी उससे गुजरी हूँ, कभी किसी को दिखाया, किसी ने टेस्टिंग भी करवा ली, लेकिन यकीन जाने टेस्ट को इंटरप्रेट एक माहिर डॉक्टर ही कर सकता है। और पैंस एंड पैंडास का डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है, और कुछ टेस्टिंग या डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो आपके, अगर आप अपने मुल्क में बैठे सारे टेस्ट नहीं भी करवा सकते तो वो उन टेस्ट में से कैसे इंटरप्रेट करता है। मैंने लकीली मोल्ड के ऊपर पिछले दफा जब कोरोना आया और हमें घर बैठने का मौका मिल गया और ये सारा कुछ मैंने स्टडी किया, लकीली मुझे पता चल गया, कुछ क्लू मिले और अल्लाह की मेहरबानी कि मुझे पता चल गया कि ओके ये मोल्ड की वजह से हुआ हो सकता है। और जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे सबसे पहले तो अपने इश्यूज का पता चला कि मुझे इश्यूज कहाँ से आए हैं, व्हाई आई एम सो लेथार्जिक, मूड स्विंग्स, बिहेवियर इश्यूज, ये तो सब कुछ मेरे अंदर आ चुका हुआ था। तो और उसके बाद बच्चे में, लेकिन बच्चे को कह ले मैंने भी जाहिर है बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन बच्चे को भी पुश करने में कुछ गलतियां भी शामिल थी। मसलन वैक्सीनेशन करवाना, मोल्डी एनवायरनमेंट में रखना, वो 4 साल मोल्डी एनवायरनमेंट में रहा है, तो ये सब कुछ उसके अंदर शामिल था। तो थैंक यू सो मच बेनज़ीर। आई थिंक आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हाईलाइट किए हैं और एक्चुअली आई एम टेकिंग नोट्स। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में पैंस और पैंडास की अवेयरनेस नहीं है जो कि होनी चाहिए, एंड वी वुड एक्चुअली लव टू होस्ट अ मोर डिटेल्ड यू नो सेशन विद यू ताकि हम इस चीज़ के ऊपर बात कर सकें, ताकि पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया हो कि क्या सिम्टम्स हैं और क्या किन चीज़ों को वो वॉच आउट कर सकते हो। कि बहुत टाइम्स ऑटिज्म इज एग्जैस्परेटेड विद अ मेडिकल कंडीशन जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो वी वुड लव टू हैव यू ऑन अगेन, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ मिनट जो मैं आपको दूंगी दैट विल नॉट डू जस्टिस टू योर जर्नी। तो बट थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू द लाइट। तो विद योर परमिशन आई लाइक टू move on and address a few more moms, क्योंकि हमारा फिर सेशन 1.5 घंटे से ऊपर चला जाएगा तो I'm not sure कि लोग देखेंगे, और मैं चाहती हूँ कि लोग जरूर लर्न करें इस अपॉर्चुनिटी से। We have Ruqayya Zulfikar. If you're here, please go ahead and unmute yourself. अस्सलामुअलैकुम जी, मैं रुक़ैया जुल्फ़िकार और बहरीन से आपसे बात करूँगी। थैंक यू टू अलाइना जिनके रेफरेंस से मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली लगता ये है कि मैं सबसे ज़्यादा ओल्ड हूँ आपके ग्रुप में, क्योंकि मेरे बेटे जो एहसन है वो 23 इयर्स ओल्ड हैं और जी वो डायग्नोज हुए थे 3 इयर्स में और PDD परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर उस टाइम में डायग्नोज हुआ था और आगा खान में हुआ था। मेरा ये था कि मैं बहुत ट्रैवलिंग में रही हूँ, मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी थी तो हम डिफरेंट गल्फ के कंट्रीज में रुके। तो इनिशियली सऊदी में ऐसे जब बहुत छोटे थे तो 3 तक हमें पता चला कि समथिंग इज नॉट राइट। तो फिर यही था कि आई थिंक ज़ैनब ने जो बात की कि 1.5 साल तक वो थोड़ा नॉर्मल थे, फिर रिग्रेशन में चले गए। तो कुछ इनिशियल चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं मदर्स की यहाँ पे। फिर पाकिस्तान में जाके मुझे मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि मैं इसकी आई थोड़ी स्क्वेंट करती थी और मैं इसको एक कराची में डॉक्टर के पास जब लेकर गई तो ये आंखों में चेक नहीं करने दे रहा था, किसी भी तरह से उनको अलाउ ही नहीं कर रहा था। लाइक एक तो मतलब एक होता है कि नहीं चेक करने देना, लाइक वहाँ पे एक फाइटिंग काइंड चल रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इसको चेक कैसे कराएं। तो एट दैट टाइम डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको दिखाना चाहिए इसको कि ये इट्स नॉट अ लाइक ऐसा नॉर्मल बच्चे नहीं करते, इट्स समथिंग इज डिफरेंट। तो खैर वहाँ पे उन्होंने हमें गाइड किया, एक स्कूल था, आई डोंट नो है कि नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो फिर हम वहाँ लेकर गए और वहाँ से हमें पता चला कि एहसन को ऑटिज्म है एंड वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। सऊदी में हम लोग रहे, बहुत सारी चीज़ें जो कि अब सब मदर्स बता चुकी हैं तो मुझे लगता है कि वो रिपीटिशन हो जाएगी। मैं कट शॉर्ट ये बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि मदर्स जो है अगर स्केड्यूल कर लें चीज़ों को तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है। आपके डे स्केड्यूल्स होते हैं तो आप कर पाते हैं। मैं क्योंकि वर्किंग कभी नहीं रही तो मैं ज़्यादातर ये था कि मैं स्केड्यूल बनाती थी, जब ये मेरे पास होता था तो मैं स्केड्यूल्स के थ्रू चलती थी और उसको जो भी मैं थेरेपीज़ में लर्न करती थी मैं कोशिश करती थी कि उसको रिपीट कराऊं और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं वो सीखूं, वो लर्न करूं और कोशिश करूं कि वो क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं
और वही चीजें मैं उसको फिर अंटिल नेक्स्ट क्लास तक रिपीट कराती रहती थी। तो मुझे लगता है उसने बहुत हेल्प किया। और एक बड़े मजे की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जब ऐसे नया नया लव सीखने जा रहा था तो मेरे पूरे घर में हर चीज के ऊपर उसका टैग लगा हुआ होता था। अगर एसी है तो एसी में लिख देती थी, सोफा है तो सोफा लिखा होता था, विंडो है, डोर है, एनीथिंग। तो क्या है कि वो उसकी वजह से एसएन की रीडिंग इतनी अच्छी हुई कि वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेता है अभी। लाइक रीडिंग इसका पैशन है और वो बहुत अच्छे से रीडिंग करता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब क्योंकि मेरा जर्नी सबसे ज्यादा लंबी है तो चीजें तो बहुत हैं, बट मैं बस मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स स्केड्यूल करें, फूड कंट्रोल करें, ट्रीट देम एज नॉर्मल एज यू कैन। मतलब आप सोचें ही नहीं कि वो इतना स्पेशल बच्चा है, उसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करें जैसे कि वो नॉर्मल है। और मैं घर पे उससे छोटे छोटे काम उसको साथ करवाती रही, तो उसकी वजह से ऐसा ना, मेरा ऐसा बहुत हेल्पफुल बच्चा है घर पे। वो मेरे लिए गार्लिक पील करता है, मेरे लिए कपड़े बाहर डाल देता है, वाटर बॉटल्स फिल करता है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम, अपनी बेड कवर्स वो चेंज करता है वीकेंड्स पे, हमें हेल्प आउट करता है चीज़ों में। तो कहने का मतलब कि आप इन्वॉल्व करिए जितना आप उनको घर के कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि शायद मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि एहसन अब उस एज में आ गए हैं कि मुझे लगता है कि स्टडीज से वोकेशनल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप उनको सिखा रहे होते हैं। क्योंकि आप लोग सब अभी उस एज में जहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, 10 ईयर्स के हैं, 11 ईयर्स के हैं, 15 ईयर्स के, तो मुझे लगता है कि 15 के बाद आपका ये होता है कि आप उनको सिखाना शुरू करें। क्योंकि जिंदगी में उन्होंने जीना कैसे है, कभी उनको अकेला रहना पड़े तो क्या करेंगे, यू नो, कभी आप उनको किसी के पास छोड़ें तो क्या वो डस्टिंग कर पाएंगे, कवर बना पाएंगे, यू नो, अगर आप किचन में हैं तो क्या वो आपको हेल्प कर पाएंगे, प्लेट धो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जर्नी अभी जिस उस पे है, आप लोग स्टडी को ज्यादा फोकस करें, और मैं जिस स्टेज पे आ गई हूँ मैं वोकेशनल को ज्यादा फोकस कर रही हूँ। एंड आई एम लुकिंग कि मुझे जैसे मिले, तो वो आई थिंक स्टेजेस होती हैं, हर माँ जैसे जैसे उस स्टेज से गुजरती है तो वो उसको प्लान कर रही होती है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। तो मेरे लिए ये है कि अब वोकेशनल ज्यादा इम्पोर्टेंस आ गई है उसकी। और एहसन ने माशाल्लाह दो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं बड़े फेमस, उनके एचआर डिपार्टमेंट में जाके कंप्यूटर की वो सर्विसेज देता रहा है। फिर उसने कुकिंग की काफ़ी शेफ्स वगैरह से वो की हैं, कटिंग वगैरह में मैंने उसको इन्वॉल्व किया, स्विमिंग वो बहुत बचपन से जानता है, तो फिजिकल भी। और मतलब मैं भी कुछ चीज़ छोड़ती नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो छोटी है या वो बड़ी है, जो भी मेरे रास्ते में आती रही है तो मैं लेती रही हूँ उसको। सो जस्ट मतलब जो आपके रास्ते में आए उसको जाने मत दें, उसको ग्रैब करें, उसको यूज करें। और खुद लर्निंग जितनी आप करेंगी तो मुझे लगता है कि वो आप सिखा पाएंगी, क्योंकि थेरेपी 1 आवर की होती है, 45 मिनट्स की होती है, बच्चा आपके पास ज्यादा टाइम होता है, तो वो आप जब सिखाते हैं उसको तो वो लास्टिंग हो जाती है चीज। क्योंकि आपको गाइडलाइन चाहिए डेफिनेटली, और अप्लाई करना है। हम पढ़ते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि जितना हम अप्लाई करते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो जितना पढ़ें उतना तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन मैंने पढ़ने से ज़्यादा करने पे फोकस ज़्यादा रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसको बिल्कुल रियल लाइफ में रखूं, इसको जिंदगी की वो चीज़ें सिखाऊं कि जैसे हम नॉर्मली लिव इन करते हैं घर पे, डस्टिंग भी करते हैं। मैं लोगों के नॉलेज के लिए बात एक्सप्लेन करती चलूँ कि जो अभी रुकैया शेयर कर रही हैं वो एक्चुअली दिस इज इसको इधर वेस्ट में एक मॉन्टेसरी स्टाइल ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो उनका क्लासरूम का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है जिसके अंदर बच्चे अपना छोटा छोटा काम खुद से कर रहे होते हैं, टाइडी अप वो खुद से कर रहे होते हैं, बेकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल, क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट जो है फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, और एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए सूटेबल भी है। तो आप रुकैया की इंटुइटिव पेरेंटिंग का ये तरीका देखें कि वो उनको पता नहीं था लेकिन शी वाज फॉलोइंग दोस स्टेप्स, और उनके बेटे के लिए दैट हैज ओपन्ड सो मेनी डोर्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। हमारे पास अभी वजीहा मौजूद है। We just have 2 more parents, so then we can wrap this up. Wajiha, if you're here, you can go ahead and unmute yourself. Assalamualaikum. How is everybody? Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead, please.
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर होल्डिंग दिस सेशन यार। और बात सारी ये है कि मैं बहुत देर से जो चीजें सोच रही थी बोलने के लिए, और काफी सारी मॉम्स जो है वो पहले ही बोल चुकी हैं रिगार्डिंग द आइडिया एंड द थीम आई हैड इन माय माइंड। थैंक यू अलीना। और अलीना को मैं जानती हूँ, डॉक्टर सना को, और बतूल को मैं फेसबुक के थ्रू जानती हूँ समहाउ। सो मैं अपनी जर्नी अगर स्टार्ट करूँ, सो आई एम अ मॉम ऑफ, मैं अब तक बहुत इधर आ रही थी कि आई एम द सीनियर मोस्ट बिकॉज आई हैव अ सन हु इज 15 years old, लेकिन मुझे पता लगा मुझसे सीनियर भी यहाँ पर मौजूद है लोग। सो अस्सलाम वालेकुम। तो अब 15 years का मेरा बेटा है, हिज नेम इज अयान जावेद एंड ही इज, आई कैन प्राउडली से, इज द स्मार्टेस्ट गाय आई नो। क्योंकि मैं अगर अपनी जर्नी इस से स्टार्ट करूँ, वी वर इन जापान एट दैट टाइम। सो जैसे कि बहुत सारी मॉम्स ने कहा कि शुरू में आपको समझ में नहीं आता कि व्हाट्स हैपनिंग, हो क्या रहा है, मसला क्या है, क्योंकि उसके सारे माइलस्टोन जो थे वो इंटैक्ट थे। देयर वर नो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, कोई पिकी ईटर भी वो नहीं था, ही वाज हेल्दी हैप्पी चाइल्ड। So right in the beginning मुझे ये लगा कि since he is exposing to 3 languages, that is English, Urdu and Japanese, that's why वो languages उसको trouble कर रही हैं। उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था, आज से 15 साल पहले ऑटिज्म और शायद नया था और उस कंट्री के लिए बहुत नया था। तो मुझे ये लगा कि ये एक्चुअली स्पीच जब तक नहीं आएगी इसकी, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि कम्युनिकेशन और स्पीच में फर्क क्या है, क्या मतलब उसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे ये लगता था एक दफा ये बोलना शुरू करेगा तो जाहिर है फिर वो कम्युनिकेशन ही तो होगी, फिर वो कम्युनिकेट भी करेगा। तो और मैं उसकी छोटी 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 जैसे कहना चाहिए, अयान हैज बीन माय लीड, उसी को देख के मैं आगे बढ़ी हूँ। उसकी जैसे कि एक मदर ने कहा कि उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने काम किया, कोशिश यही की राइट फ्रॉम द बिगनिंग। बेनतहा वीडियोस देखी क्योंकि उस वक्त मेरे पास लर्निंग सोर्सेज वही थी, उनको देख के मैंने एबीए शुरू किया। आई हैड अ बुक वर्क इन प्रोग्रेस, उसको देख के मैंने छोटे छोटे स्केड्यूल बनाने शुरू किए, अपने टारगेट सेट किए, क्योंकि 1 month में आई हैव टू फिनिश दिस ऑफ, और फिर वो अचीव कर लेता था। फिर मैं उसके पूरे ग्राफ सेट करती थी कि अच्छा ओके पर काम करती। पेरेंट्स को जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, माय मैसेज इज, कैन यू हियर मी, बिकॉज आई सी माय स्क्रीन फ्रोजन। Can you hear me? Hello. We can Yes, hear we can hear you. We you. can hear Can you. you hear me, guys? Yeah, हम actually हम आपको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। Okay. Okay. So मेरा पेरेंट्स को मैसेज ये है कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद एकेडमिक्स, क्योंकि होता ही है कि शुरू में हम जब स्कूल जा रहे होते हैं, वी आर वेरी हैप्पी कि जी बच्चा स्कूल जा रहा है। और मैं भी बड़ी उसमें वो थी कंटेंट के, जी शेडो टीचर थी, स्कूल जा रहा था मेरा बेटा। जर्नी एक्चुअली बहुत लॉन्ग है क्योंकि 15 सालों की जर्नी है, लेकिन अगेन वही कि अगर हम सारी डिटेल्स बताने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा। सो मैं पिन पॉइंट ये करना चाहूंगी, वर्क ऑन देयर इमोशनल हेल्थ फर्स्ट। एज ए पर्सन टेक देयर ओपिनियन, रिस्पेक्ट देम, वैल्यू देम। और उन मदर ने तो ये कहा था कि जी आप 15 साल के होते हैं देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग। आप बचपन से ही उनके इंटरेस्ट देख के जैसे एक और मदर है, वाज वेरी आई कैन रिलेट टू हर, एक और मदर थी आई थिंक हुजैफा की मदर, व्हाट शी वाज सेइंग आई कैन से द सेम थिंग, कि उनके इंटरेस्ट के गिर्द ही आप उनका करियर डेवलप कर सकते हैं। लाइक माय सन हैज अ रियली गुड कंप्यूटर स्किल, ही मेक्स सोशल स्टोरीज, और ही हैज वर्कड इन अ मूवी, और वो एनिमेशंस बनाता है, ही इज अ सेल्फ टॉट एनिमेटर, ही इज अ ग्रेट कार्टूनिस्ट। और मैंने अलीना के साथ कुछ कार्टून्स भी शेयर किए थे। सो Ayan, actually I respect and value his opinions also. He decided himself that he want to be homeschooled because school and exam pressure was stressful हमारे बच्चों के लिए। stressful. So दूसरे ये थे, एक अभी बहुत सारी ने ये बात भी कही कि जी हम जो है वो स्कूल में गए और हमें, तो मैं कहती हूँ कि टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग, कि अगर स्कूल ने रिजेक्ट किया, इट वाज नॉट एबल चाइल्ड जो कि आपके बच्चे की नीड को कैटर नहीं कर सकता, rather than go to the school जो कि आपके बच्चों की नीड को कैटर कर सकता है, वो अंडरस्टैंड करता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है वो why are you telling them the diagnosis of your child because apparently he does not look autistic, so आप मत बताएं।
और अगर आप बताएंगी तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल उनको वो चाहिए होगा सारा कुछ. बट आई थॉट इट्स अनफेयर, वी शुड टेल देम. वो अदर चीज है. बिल्कुल अलग बात यह है कि मैं बहुत सारे स्कूल ने हमें भी बहुत रिजेक्ट किया, लेकिन जिस स्कूल ने एक्सेप्ट किया उन्होंने हमें स्पेस दी, उन्होंने हमें एक्सपीरियंस करने की इजाजत दी. Ayan perform in tableaus and dramas. They actually included him. So now, yeah, this is all about my journey. Thank you so much for that, Viji. हाँ, actually मैं इस बात को highlight करना चाहूँगी. आपने फिर एक और बहुत अच्छा point जो है वो उठाया. And it's so amazing कि इधर moms इतनी अच्छे points raise कर रही हैं कि उसकी तो मैं एक summary बना के लिखना चाहूँगी. और ये कि आपने बच्चे की mental health को जो है वो prioritize किया, right? कि उनके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, उनके ऊपर जो है उनकी इमोशनल हेल्थ वो कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करें और उनके सलीकों को, उनके इंटरेस्ट को निखारना. Did I get that right? Yes, exactly. Sounds so still I'm working on that. That's amazing. और actually मेरी आपकी जर्नी मैं इस पॉइंट के ऊपर खुद हूँ क्योंकि मैं ऐसा स्कूल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिधर मेरे बेटे के इंटरेस्ट को जो है वो फोकस किया जाए और 1+1 2 मैथ वाली चीज के अंदर मुझे उसे नहीं डालना. और मेरे बेटे का नाम भी अयान है, तो थैंक यू सो मच. मुझे लगा कि yeah, that's it. Thank you, Ayan Club. तो अब हमारे पास लास्ट मॉम इधर है फिजा आबिद. Go ahead, please unmute yourself. Thank you for your patience. I know it's a long session we have got going, but thank you so much. Please go ahead. It's okay. Thank you so much, all of you. First of all, assalamu alaikum to all the super moms. I have been listening to all of you. मैंने सबका सुना and I was recalling हर किसी की बात से कोई ना कोई मेरी बात मुझे relate लग रही थी कि इसके साथ भी ऐसे हुआ है, मेरे साथ ऐसे हुआ था. हर मॉम ने कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस कर लिया जो सब कुछ मैंने भी फील किया, जो सब कुछ जिसके थ्रू मैं गुजरी और जिन स्ट्रगल से आई. सो आई नो सब कुछ डिस्कस हो चुका है, शॉर्ट एंड लॉन्ग ऐसा ही है. सो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड ऑन सम वेरी स्मॉल थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम मदर ऑफ 3 kids, mashallah, and my middle one, Ibrahim, he's 6.5 years old now, and he was diagnosed on autism spectrum when he was 3.4, 3.5, I guess. So yes, indeed, he's the child who is also my teacher for the thing that autism का वो लफ्ज़ था जो मैंने जिंदगी में कभी कहीं ना सुना था इससे पहले, ना मैंने कहीं पढ़ा था. And I used to ask my pediatrician, कोई मसला है, मतलब मैंने 1-2 दफा उसको बहुत ज्यादा मतलब अपने हिसाब से बहुत मारा था, मतलब मुझे याद है. और उसके मतलब आधे पौने घंटे बाद he was so normal with me कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं. ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा उस चीज को रिकॉल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, एंड जस्ट एवरीथिंग वैनिश. आज माय हस्बैंड, मैंने कहा यार ये एक अपने टाइप की चीज है कि इसको मैंने मतलब इसकी पेंटी आज मैंने लगाई है जिंदगी में पहली दफा, और ये फिर भी जो करना चाह रहा है ये वही कर रहा है. ही इज नॉट लिसनिंग टू मी. उसने कहा यार छोटा है, तुम ऐसे इसके ऊपर जरा ज्यादा हो रही है. आई वाज लाइक फाइन. I asked my pediatrician, यार कि he is always into TV and he is always into screen इसकी इस तरह थी जो कि मैं सोचती हूँ तो I feel really ashamed of myself sometimes. इसकी screen एक ऐसी थी कि he had a small room, television is on the side, वहाँ पे एक TV चल रहा है, एक टैब इसके हाथ में है. टीवी पे ये सिर्फ नातेस लगवाता था और सुनता था, और टैब पे सिर्फ ये फोनिक्स से रिलेटेड सुनता था. दोनों में से कोई एक भी चीज को बंद नहीं होने देता था. इसने साइमल्टेनियसली दोनों सुननी होती थी एंड इट वाज फॉर आवर्स. और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक टैब चार्ज करके रखती थी कि टीवी तो बंद नहीं होगा, टैब जब चार्ज खत्म हो जाएगा तो आई हैव टू गिव हिम द टैब, उसको रिप्लेस करके. दैट वाज द थिंग जो उसको एंगेज रखती थी. ही हैज हिज ओन प्लेस. I don't know, he was quite normal from the beginning, mashallah, everything, name, response. बस yes, मैं कहती थी मेरा बड़ा बीबा बच्चा है, पंजाबी में बीबा बोलते हैं, बड़ा बीबा बच्चा, तंग नहीं करता, ज्यादा नहीं कहता कि आओ जी, पकड़ो जी, करो जी. When I used to see his pictures now, so yes, it was after his vaccination that he started के पीछे पीछे होना कि नहीं, ज्यादा लोगों में नहीं जाना, हंसना नहीं, खेलना नहीं, बैठना है, चीखना है, रोना है. Yes, he started at that time जमीन पे लेट के बहुत लंबी लंबी लाइंस बनाना.
2-2 घंटे के लिए अपने बाजू पे लेट जाता था और उसी पोजीशन में एक गाड़ी के साथ खेलता था और उल्टा करके भी से। और मैं कहती थी, और उसमें कोई इसको डिस्टर्ब करता था तो ही वाज वेरी डश कि बस किसी ने छेड़ दिया। तो आई वाज लाइक प्लीज डोंट से हिम एनीथिंग, ही इज रिलैक्सिंग। आई डिडंट नो कि वो रिलैक्स नहीं था, एक्चुअली ही वाज गोइंग इनटू अनदर वर्ल्ड। So yes, when we went to the doctor after my so much thoughts कि नहीं किसको कहीं लेके जाना है, मेरे pediatrician ने कहा just send him to the school, he'll be in kids, he'll be normal. That was the only solution. घर में सबने कहा, बड़ों ने कहा, इसका दादाबू 4 years के थे तब बोले थे, इसके उनके दादाबू 4 years के बोले थे, ये लड़का है देर से बोलेगा। So every myth, हर टाइम मेरे कंसर्न नीचे आ गए कि नहीं ठीक है, it's maybe a family thing, I don't know, maybe. So when we went to the psychologist and he said उसने 2-4 दिन देखा, उसके बाद उसने अपनी तरफ से बड़े तरीके से हमें बताया, we both parents were with the kid and said actually we think that he has autism, and we were like okay, so what next? And she was like he has autism we think. मैंने कहा yes ठीक है, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है इसे autism है, ठीक है, it's a name, आप बताएं अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। Then that was the first time that really shook my heart in a sense when she said आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमेशा ऐसे रहेगा, if you have money, if you are rich people, just plan his future, आप उसका क्या कर सकते हैं। And मैंने उस बंदी को देखा and I look at my husband and I was like I mean what is this, ये हमेशा ऐसे रहेगा, बस ये ऐसा ही है। And at that time he was crying like hell, he was lying on the floor of the hospital and he was demanding to have his own car जो हम घर छोड़ आए थे। and उसने कहा ये ऐसा ही रहेगा सारी जिंदगी जितनी इसकी जिंदगी है। bluntly we came back home, we opted for other options, हम गए लोगों के पास, देखा किया, yeah we cried for 2 whole days, 2 दिन तक रोते रहे क्योंकि फर्स्ट पर्सन था जिसने हमें कह दिया ये ऐसे रहेगा सारी जिंदगी और कुछ भी नहीं हो सकता। तो you know repentance भी हुई कि हम लोगों ने अपने आप को guilty feel किया कि when he demanded us to go outside we said नहीं TV देख लो, okay we are going out, you can't go with us, it's a big party, all that stuff that came to us। we started going to other people, मैं pediatrician के पास गई, उसने कहा अच्छा ऑटिज्म बोला है, ओहो मुझे नहीं लगता ये ऐसी नहीं होगा, चले छोड़ें आप देख लें अगर कुछ कर लें। and I was like these people are hopeless। आपने ये गुड पॉइंट उठाया और इधर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में क्योंकि इतनी डिफिकल्ट जर्नी है और ज्यादातर माओं की है पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, व्हाट डू यू थिंक वाज हेल्पफुल क्या था? हेल्पफुल क्या था, मैं अब इसी तरफ आ रही थी। when 2 दिन तक हम रोते रहे, उसके बाद मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों एक फाइनेंशियल बंदे हैं, लाइक वी आर कैलकुलेटर्स, हर चीज हमें फाइनेंस कैलकुलेटर से चलते हैं। okay what next, okay this what next, we sat down and we googled everything we tried to learn कि क्या है ये। फिर उसके अंदर जब हम पढ़ते थे ऑटिज्म के नीचे ही एस्पर्गस आ जाता था, फिर इतने बड़े बड़े नाम आ जाते थे, आइंस्टाइन आ रहा है, ये आ रहा है, हमने कहा यार ये क्या है, वो कहती है ये ऐसे ही रहेगा सारी जिंदगी, यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और वो दिखा रहे हैं हमें जीनियसेस हैं, तो व्हाट इज दिस। वी डिग फर्दर, हमने बैठ के ये कॉन्वर्सेट किया कि व्हाट नेक्स्ट, एंड व्हाट वी कॉन्वर्सेटेड इट वाज सिमिलरली लाइक जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको जो भी है, उसका जो भी नाम है, जो भी कुछ है, he needs help, we have to help him, हमें उसको हेल्प करना है। नाम इसका कुछ भी हो जाएगा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम किसी और के पास जाएंगे, वो कोई और इससे हमसे बातें पूछेगा, हम कहेगा वो कोई और नाम बताएगा, बट नो एक्चुअली ही नीड्स हेल्प। हम दोनों इस पेज पे थे एंड देन वी वेंट टू लाहौर, वी आर फ्रॉम मुल्तान, हम लाहौर चले गए, वहां हमने 3, 4, 5 जगहों से एक ही टाइम पे 1-2 हफ्ते वहां रह के सबसे इसको हमने डायग्नोज कराया कि इसको क्या कहते हैं लोग। 2 ऑर्गेनाइजेशन से कहा नो ही इज नॉट ऑटिस्टिक, 2 ने कहा नो ही इज ऑटिस्टिक, लेकिन एज DSM-5 में एस्पर्गस नहीं है, सो वी कांट से ही इज एस्पर्गस, लेकिन हमें पता है कि ही इज अ वेरी हाई फंक्शनल चाइल्ड, ये एस्पर्गस है, बट यू नो यू नीड टू डू वर्क विद हिम। जब ये सारा कुछ हो गया और 2 ने हमें कहा ही इज अ डिलेड चाइल्ड, जस्ट अ डिलेड चाइल्ड विद स्पीच, क्योंकि इसकी अच्छी नहीं है तो ये स्पीच आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वी हैड 3 डिफरेंट ओपिनियंस एट दैट टाइम, अगेन वी कॉन्वर्सेट इन लाहौर व्हाट टू डू।
एंड देन हमने जिनसे भी डिटेल में बात की, उन लोगों में से कुछ लोग बहुत बहुत अच्छे हमें मिले और उन्होंने ये हमें कहा कि एक्चुअली इट्स यू हैव टू गिव द टाइम, लेकिन कैसा टाइम, यू हैव टू लर्न। ये नहीं कि आप अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठे रहेंगे एंड इट वुड बी अ मिरेकल फॉर हिम कि आप उसके पास हैं अब हर वक्त तो आपने उसके लिए एक मिरेकल कर दिया। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू हैव टू स्पेंड द टाइम। दैट वाज द थिंग दैट क्लिक्ड मी। Then we started reading. मुल्तान में कुछ नहीं था, no therapies, nothing at all, कुछ भी नहीं था। I was not aware of it. मतलब हर किसी ने पूछा पिकी ईटिंग है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब कुछ क्या। एक्चुअली फिर मेरा सब वापस घूम फिर के वही आ जाता है कि what helped, like in top 2 या top 3 things that you think देखने वाली माँ के लिए helpful हो। मेरे लिए क्या हेल्प हुआ, क्योंकि मैं हूँ एक छोटे शहर में मुल्तान में, जहाँ पे उस वक्त तो अब तो फिर भी बहुत कुछ है, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो it was an option, either we have to move to Lahore or some big city, या मेरे हस्बैंड ने कहा I can't leave my place because he's a businessman. उसने कहा you have to think what we can do for him here. So that was the first thing कि मुझे सोचना पड़ा मैं यहाँ रह के इसके साथ क्या कर सकूँ। I had to learn, मुझे पढ़ना था, मुझे सीखना था, because no therapist was there, nothing at all, मुझे सीखना था इसके लिए। इसी tenure में Mr. Mansoor Chaudhary, you will be well aware of him, he's a doctor, BCBA from America. He had a training in Lahore, RBT training, and I researched on it and I thought it would be beneficial. And I asked my husband and I said, I want to have this training. He said, okay, fine, I'll take care of the kids, you can go and you can do. It was a 10-day training. 5-day it was all lectures and 5-day it was hands-on training. I got to know how I can talk with my son when he is not in the mood of talking to me. Again, वहाँ पे सब ABA सिखाया किया मुझे। मेरे लिए वो जो एक कोर्स था, that was a turning point. I got to know मुझे अपने बेटे के साथ क्या काम करना है, कैसे काम करना है, मैं कैसे उसके साथ उसके वर्ल्ड में जा सकती हूँ। अगेन इधर मैं यहाँ पे एक और चीज करना शुरू करूंगी। जब हम थेरेपीज का नाम लेते हैं तो एक स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम आना शुरू होते हैं। सनराइज आ गया, ABA आ गया, क्या आ गया, which one we should follow, which one we should not follow, किसके प्रोज हैं, किसके कॉन्स हैं। अगेन मैं कहूंगी अपने बच्चे को देखें। मैं नहीं कहूंगी कि मैंने अपने बच्चे के साथ ट्रू ABA किया, मैं नहीं कहूंगी उसके साथ मैंने ट्रू सनराइज किया, बट जहां मुझे सनराइज की जरूरत थी उसके साथ एक पेयरिंग के लिए मैंने उसको सनराइज को ज्यादा यूज किया। जहां उसके टेबल टॉप पे बैठ के मुझे ABA की जरूरत थी मैंने ABA ज्यादा यूज किया। मैंने उस बुकिश नॉलेज को अपने बेटे पे एज इट इज अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। I just did what he was going through. वो एक फ्लो में आना शुरू हो गया मेरे साथ। When I got his confidence, तो I thought कि अब मैं इस फ्लो में इसके साथ जा सकती हूँ। और ये तब बात मैं उसके साथ जाने लगी। शेयर की है वो बहुत बहुत वैलिड बात है, क्योंकि जैसे कि मुझे लगता है कि न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स हमेशा वही रूट लेने की कोशिश करते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है कि जी ये ABA, ये OT, ये स्पीच। लेकिन आपको देखने की जरूरत है कि बच्चा आपको क्या दिखा रहा है, बच्चे की नीड्स क्या हैं, और अगर आप उसी तरीके से अपने आप को जरा सा एजुकेट करें। किताबें तो बहुत मौजूद हैं और लोगों की स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, गूगल में सारी ट्रांसलेशंस भी मौजूद हैं, तो ये एक रीजन नहीं हो सकता। लेकिन आप ये देखिए कि आपका बच्चा किस थेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है एंड यू डू इट योरसेल्फ, बिकॉज आप अपने बच्चे के साथ हमेशा होते हैं, बच्चा आपके साथ सेफ महसूस करता है। और आप ऐसा कितने थेरेपिस्ट को लेके आएंगे जो कि हैनन भी जानता हो, सनराइज भी जानता हो, ABA भी जानता हो, RBT भी जानता हो, लाइक ऐसा बंदा मुझे तो आज तक नहीं मिला। So if you learn it, right, if you learn the top features that your son, your child, your daughter needs, then you can do it on the go. And that is what empowerment is all about. Jahan tak मेरी understand. Batul, I would also add on in it that yes, my child needed a sensory integration therapy very badly because उसके अंदर sensory issues बहुत ज़्यादा थे. First haircut, nail cutting, कानों का साफ करना, नहलाना, पानी, मतलब you name it and he has it. We didn't know that, but when we got to know, हमने उसकी वो therapies भी ली. Speech therapy, yes, because he was on screen all the time. He didn't have any functional language. He was verbal, mashallah, but no functional language at all. सिर्फ एक ओरियो वो खाता था सारा दिन और दूध पीता था, और सिर्फ उसने वो 2 नाम सुने हुए थे, योयो एंड दूधू. That's it. Nothing else. कुछ चाहिए तो जाके पास खींचा और किचन में ले गया या कहीं ले गया, and all that thing happened. हमने स्पीच थेरेपी भी ली, बट मैं अपनी जर्नी में मैं ये बताऊंगी, आई वॉज अ वेरी ओपन लर्नर.
I was not a biased learner for anything. मुझे जिसने जो कुछ सीखने का कहा मैंने सीखा, लेकिन उसको डेफिनेटली अप्लाई वैसे नहीं किया. मैंने सीखा जरूर, पढ़ा जरूर, लेकिन अप्लाई उसको अपने बेटे के मुताबिक किया. Yes, every child on spectrum is different, so is my child. Recently 2 साल पहले जब उसका दोबारा सारा प्रोसेस हमने कराया, सारी इसकी डायग्नोसिस वगैरह, किसी ने उसको ऑटिज्म के स्केल पे नहीं लाया. He went in the developmental delay scale in बहुत से कुछ स्कूल. अपनी तसल्ली के लिए मैं उसका A-tag करती रहती हूँ. अभी लास्ट वीक मैंने इसका A-tag किया and it was like 7 to 8. 2 दफा मैं करती हूँ कि 7 do it, but still I can't say he doesn't need help. He needs help. वो हमेशा उसको फॉरन हेल्प चाहिए. इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला A-tag का, क्योंकि लोग जो है अपने बच्चों की ग्रोथ A-tag से तो कर सकते हैं मैनेज, जो प्रोग्रेस जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं A-tag से सकते हैं. जस्ट लाइक ऑब्वियसली पेरेंट्स को घर पे बैठ के एक चेकलिस्ट करना आसान हो जाती है, तो दे नो कि व्हाट दे वर्किंग ऑन, इज इट एक्चुअली इवन वर्किंग. लेकिन ये मंजिल नहीं है. दिस इज मंजिल नहीं है. नो मैं ये कहती हूँ कि अगले 4 साल तक भी उसका स्कोर अगर 7 होगा तो he needs help, because उसकी डोमेन्स चेंज हो रही हैं, उसकी हर वक्त डोमेन्स चेंज हो रही हैं. उसको कभी सोशलाइजेशन में मुझसे हेल्प चाहिए कि मैं उससे सोशलाइजेशन में उसको हेल्प आउट करूँ, कहीं कम्युनिकेशन में उसको हेल्प आउट करूँ. सो यस, एक्सेप्टेंस इज वेरी नेसेसरी. वन थिंग मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसको जो भी है, ऑटिज्म है, वो डिले है, वो एस्पर्गस है, वो कुछ भी है, बट मुझे उसके साथ सपोर्ट करना है, मुझे उसके साथ रहना है. No matter how he is right now or he will be after a few years or he was before some years. Okay. उसका कॉन्फिडेंस और हर चीज उसके साथ. सॉरी, मुझे जो है मॉम्स मैसेज कर रही हैं और वो बता रही हैं कि लाइक दिस सेशन हैज गॉन ऑन अ लिटिल बिट टू लॉन्ग. मैं चाहती हूँ कि सब इस सेशन को देख सकें, तो मैं मैं रैप अप करूंगी. लेकिन मैं आप लोगों से, जितनी भी माएँ यहाँ पे आज मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई चीज रह गई है जो कि आप लोगों को लगता है आप लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो लाइव के नीचे जाके कमेंट्स के अंदर प्लीज जरूर शेयर कीजिए. शेयर दिस लाइव टू पीपल हुम यू थिंक विल बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमने इधर शेयर की हैं और मैं भी रिकैप जो हूँ वो शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगी. अलीना, डू यू हैव एनी लास्ट वर्ड्स टू ऐड? अलीना या शहीरा में से, बिफोर वी रैप दिस अप. Batul, I have some points. Definitely, I'll make bullet points of this and I'll add these points below this session's chat, because I want to really tell them to the parents. बिल्कुल, और ये सबके लिए है इनविटेशन. Yeah, sure. हमें, मुझे पता है कि मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाई, लेकिन I don't know किससे ज्यादा हम ऊपर जाते हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं. 2 घंटे का लाइव देखना मुश्किल होगा लोगों के लिए, तो हम क्वेश्चंस भी नहीं ले पाएंगे अनफॉर्चुनेटली माओ से. आई नो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बट वी विल ऑल help out on the live directly, और उधर ही हम सवालों के जवाब देंगे और दूसरी माओं को भी इनवाइट करेंगे. अलीना, last words from you. Thank you so much everyone for coming. I hope ये जो आपका सेशन है ये हमने करवाया ये fruitful होगा. I got to learn so many things. हर एक का different point of view था. I'm sure कि आपको भी कुछ learn करने को मिलेगा. We're sorry because we ran out of time. तो जितने questions हैं यहाँ पे वो मैंने note down कर लिए हैं अपने पास. इंशाल्लाह मैं जो comments होंगे Facebook पे live पे वहाँ पे हम लोग share कर देंगे. और अगर स्पेसिफिकली आपने किसी मेंबर से रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो भी फेसबुक लाइव में आप जाके मेंशन कर दीजिए कि किस मदद से आपने कौन सी क्वेरी करनी है, तो आई एम श्योरली शी विल आंसर. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़. टेक केयर. थैंक यू. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz everyone. Shukriya. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम अलीना, क्या हाल चाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम. ठीक, आप बताइए कैसी है? ठीक, शुक्र अल्लाह का. बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ. I hope so.